What's up, everybody? Welcome to another podcast at Industry Changes Podcast. And today I have my man Hemant with me. Before I give his full introduction, because today we'll be discussing Hemant's journey in depth, थोड़ा सा बता देता हूँ so that everyone is like super interested, get super interested right away. Last year, 10 months back, we started working with Hemant, and he was at 50,000 per month, making 50,000 rupees per month. And now, last month, we recorded, last to last month, we recorded 11 lakh rupees in a single month. And last month was above seven figures again. And during these months, मेरे को हेमंत ने एक दिन ये मैसेज किया कि यार मैं वेला रह रह के बोर हो चुका हूँ. That Hemant has been able to set up his systems in such a great way that 1 month बीच में ऐसा गया when Hemant did not work at all. So welcome to this Hemant, and how do you feel, bro? Thank you for this opportunity, and I'm feeling very good. And आपने जो बताया कि अभी मैं बहुत ज्यादा विला हो गया था, इट्स ट्रू. क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मतलब इतना मैं कुछ एफर्ट डाल भी नहीं रहा और इतना इजी काम हो कैसे रहा है. बट सडनली आफ्टर जैसे मेरी आपसे बात हुई तो आई रियलाइज कि यार मैंने सिस्टम सेट कर दिया. और हमको आदत है कि यार हम जब तक बहुत ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जाते तो यार ये काम सही नहीं है. तो ये एक्चुअली ये हो रहा था. ठीक है bro, welcome to the podcast. And guys, what we would be covering would be number one, Hemant की पूरी journey in depth, not just fitness business वाली journey. We'll start with life journey. Then we'll understand कि how has Hemant been able to literally 20x his business. पीछे वो लगे हुए हैं, ट्रॉफीज लगी हुई है एफबी की 4x and 10x की. 20x वाली पेंडिंग है, 20x वाली भी विल डिलीवर इट टू हिम सून. And a full life journey, full business journey, and we'll also cover why I think that Hemant has been able to grow at such a great pace, and how the main principle which Hemant has worked on, that is working on his service, जो 90% लोग कहते हैं कि यार हम करते हैं, but how that has helped him become one of the top coaches in his niche, specifically when coaching women, and specifically women dealing with some lifestyle diseases or anything around that. So Hemant, question number one is very basic. What is your business and who do you help? I want to know from your own words, bro. Okay, so भाई my business like लोगों को मेरा नाम नहीं पता. My full name is Hemant Sharma and I am 24. अभी just last month मैं 25 का हूँ. And मैं जैसे कि आई हैव अ ब्रांड ऑफ फिटनेस कोच्ड बाय हेमंत, जो कि आपने नाम दिया था, राइट. एंड तो नाउ स्पेशली मेरी जो नीश है बहुत ज्यादा मतलब स्पेसिफाई है कि आई एम ओनली डीलिंग विद फीमेल्स हु इज ओवर 28. स्पेशली उनको कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन होना चाहिए, या तो वो पीसीओडी हो हार्मोन रिलेटेड, या वो सी सेक्शन रिलेटेड हो, ठीक है, या वो भाई थायराइड हो. क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार मुझे अब इतनी नॉलेज है और मैं अपनी लाइक स्पेसिफिक चीजें वहीं यूज करना चाहता हूँ जहाँ उस लोगों को नीड है. क्योंकि जनरल फैट लॉस वालों मैंने देखा चीजों को इतने सीरियसली लेते भी नहीं है. तो स्पेसिफिकली इसलिए मैंने कोई नीश प्रॉपरली हु इज डीलिंग विद पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड एंड सी सेक्शन, एंड तो मेन डीलिंग विद देयर माइंडसेट एज वेल कि यार एक बिजी वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है तो वो इतनी सारी चीजों को डील करती है बट वो अपने आप को डील नहीं कर रहे, बिल्कुल भी अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे. तो बेसिकली फोकसिंग ऑन देयर माइंडसेट एंड लाइक इनकी हेल्थ, यार इनको मतलब रिवॉर्ड देके इनको एटलीस्ट इनका हेल्थ ठीक करना है. या दैट्स द मेन थिंग. Good, bro. This is very interesting and very सुनने में बड़ा targeted लग रहा है, that kind of answers I like. Before I get into your life story, yaar, I want to understand that last year I think अपनी chat हुई थी around May, Yes, and that's when you started working with the FBA. फिर बाद में after FBA we took a break for 3 months, फिर FBA start किया. yes. Where was your business before you started working with us? Last year से पहले basically May में जब हमारी chat हो रही थी, I guess, over Instagram. तो भाई बस बिजनेस बताऊं या इंसिडेंट बताऊं हाउ आई स्टार्टेड? Totally your wish, bro. It's totally your hour. My job is just to get the best out of you, bro. Yes, please. एक्चुअली ब्रो जब मैं आपके स्टार्टिंग में एड्स देखता था टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे लगता था कि यार दीज थिंग्स आर अनरियलिस्टिक. मतलब ये भाई हो ही नहीं सकता, कोई घर बैठे बैठे 1-2 लाख रुपए कैसे कमा लेगा. बिकॉज दैट टाइम आई वाज मेकिंग इन 2029 या 2022 का बता रहा हूँ, दैट टाइम आई वाज मेकिंग भाई 8,000 रुपीज. ठीक है, मैं जी एंड 2022 में. यस ब्रो. ठीक है, ठीक है, उस टाइम 8,000 रुपए कमा रहा था.
बट एक बार मैंने आपकी टीम से जस्ट, मुझे था कि ये जस्ट जानना है कि हो क्या रहा है मार्केट में, मतलब ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। उस टाइम आपके जो एड्स दिखते थे, मुझे वो भी नहीं पता था कि कोई ये स्ट्रैटेजी भी होती है एड्स चलाने की, हाँ। कुछ पता ही नहीं था टू बी हम्म, ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू द टीम एंड यार ये भाई मतलब एक बंदा है बार बार दिख रहा है, इनसे बात करके देखते हैं क्या है ये। तो मैंने आपकी टीम से कांटेक्ट किया, तो आपकी टीम में से लाइक मेरी कंसल्टेशन कॉल हुई थी ऐसे करके। तो मुझे ना, मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे साथ साथ आज के टाइम पे इतने सारे भाई कोचिस पेन पॉइंट में है, मतलब इतने ज्यादा पेन पॉइंट में कि यार उनको ना बस एक बार कोई हाथ पकड़ ले वो कुछ भी करने को तैयार है। बट एक चीज उनको भाई पीछे खींचती है, वो है फाइनेंशियल चीजें। उस टाइम भी मेरे साथ भी ये था, तो इसलिए मैंने स्टेप बैक लिया और आपकी स्टोरी को मैं फॉलो करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज आपको भी नहीं पता, काफी लोगों को भी नहीं पता, आधे से ज्यादा चीजें बिल्ड मैंने भाई आपका बस एफबी का पेजेस देख देख के करी है। और उसमें जितनी आपने केस स्टडी डाली थी, मैंने वहां से लोगों को फॉलो किया, उनका देखा यार ये क्या नीश लिख रहे हैं, ये क्या होता है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा। तो ऑटोमेटिकली 20-30% ना मुझे चीजें वहीं से समझ आ गई थी कि भाई इनकी मतलब जिनका ये ब्रांड है उनकी बताई हुई स्ट्रेटेजी बिना यूज करे हुए आई वाज मेकिंग 20-30,000, वो भी इजी आ गए। तो मैंने सोचा ठीक है कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपने एक दिन स्टिल आई रिमेम्बर आपने एक स्टोरी डाली कि यार आई एम लुकिंग, मतलब कोहॉर्ट करके कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो मैंने उस पर रिप्लाई करा एंड सडनली आपसे मेरी बात हुई। मुझे भी नहीं पता था कि आपकी टीम है, आपकी टीम से बात होगी, मतलब लगता कि आप से बात कर रहे थे। नहीं, उस दिन मैं चेक कर रहा था चैट एक्चुअली। मैं हम उस टाइम कुछ सेल बाय चैट सिस्टम टेस्ट कर रहे थे जो आप लोगों के बिजनेस में अभी अप्लाई करवाया हमने। वो मैं एक्चुअली उस दिन आपसे चैट कर रहा था, आपसे और निनी से एक्चुअली मैं खुद ही चैट कर रहा था। भाई लोगों को मतलब एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था सेल बाय चैट क्या है, सारी चीजें नॉर्मली हम्म, टू बी हम्म, ऑनेस्ट, हम्म, क्योंकि हम्म, हम्म, हम इतने पेन में थे कि यार कोई बंदा एक बार सही गाइड कर दे, हम करेंगे मेहनत, हम्म, ये था। हम्म, तो फिर हम्म, आपने मेरे से पर्सनली वॉइस नोट पे चैट करी, आपने मुझे बताया ठीक है ऐसे ऐसे ये सारी चीजें हैं। आपने मुझे बिफोर लाइक पेमेंट से पहले आपने मुझे एक फाइल भेजी हम्म, पढ़ने के लिए कि भाई इसको पढ़ो, हम्म, पहले अंडरस्टैंड करो हम क्या कर रहे हैं। फिर आपने पूछा कि आरवी ने पोजीशन, मैंने बोला यस भाई। तो फिर आपने वहां से काफी चीजें मेरे लिए सॉर्ट आउट करी, देन आई जॉइंड एफबीए। उस टाइम पे मेरे हिसाब से भाई मैं 30-35,000 कर रहा था, वो भी मैंने हम्म, आपको बताया कैसे कर रहा था। और उसमें भी भाई ये था कि मैं मेरे पे बस फिक्स महीने के फिक्स 4 क्लाइंट थे वर्चुअल ट्रेनिंग वाले, हम्म, हर हम्म, महीने इनके पैसा मुझे पता है नेक्स्ट मंथ आ हम्म, जाएगा, हम्म, ये था। तो यहाँ हम्म, ऐसे करके भाई एफबीए की जर्नी स्टार्ट हुई थी जर्नी। हम्म। एंड देन यस भाई। चलो ये तो फिर मेरे लिए भी वो हो गया कि हमने आपको 30, 40, 50,000 से ऊपर नहीं किया, 8,000 से ऊपर किया इन्होंने। एंड यस गाइस, भाई। वन नंबर वन लेसन फॉर एवरीवन फ्रॉम हेमंत साइड इज कि यार आपको कोई मेंटोरशिप लेने की जरूरत नहीं है। सी व्हाट अदर पीपल आर टीचिंग, अदर राइट पीपल आर डूइंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है आपको एफबीए भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यू कैन लर्न एंड हिम्मत लिटरली 4x बिजनेस 8,000 से 30 पे लेके गए। अब 30,000 11 लाख के सामने कुछ नहीं लग रहा नंबर, बट इट ट्रू। इज स्टिल अ बिग जंप फ्रॉम 8,000 टू 30,000। लेसन फॉर एवरीवन इज, अगर आप अपने आप को ये कहानी बोल रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास नियत भी नहीं है। बिकॉज यू कैन लुक एट अदर गुड कोचेस लाइक हेमंत की, वो लोग क्या कर रहे हैं, और यू कैन लिटरली लुक एट आवर यूट्यूब चैनल। एट माई, मुझे पर्सनली लगता है कि यूट्यूब पे मैंने इतनी चीजें कवर कर दी है ना कि लॉट ऑफ टाइम्स मैं अपने क्लाइंट्स को भी, मतलब हेमंत ने भी कोई टॉपिक समझना तो मैं बहुत बार यूट्यूब वीडियो पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ कि यार जस्ट वॉच दैट। नहीं ठीक ब्रो, है भाई। अभी यस। अभी आप अभी तो मेरे पास देखो डायरेक्टली आपका वन ऑन वन एक्सेस है, बट स्टिल मैं आपकी हर वीडियो जाके यूट्यूब पे देखता हूँ कि मतलब भाई ने क्या कुछ नई नॉलेज शेयर करी, क्या करी, कुछ कुछ रह तो नहीं गया मेरे पास नॉलेज में। वो चीज हमेशा रहती है। चलो भाई, दैट इज ग्रेट। अब ये तो होगी भाई फिटनेस बिजनेस की बात, बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई, ये मेरे पास भी इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है गाइस, मैं भी खुद भी पहली बार सुन रहा हूँ ये स्टोरीज। कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ स्टोरी ब्रो, कि मतलब स्टार्टिंग में क्या, बचपन में क्या था, कि कब डिसाइड किया फिटनेस कोच बनना है, क्या आपका टर्निंग पॉइंट था, पूरी स्टोरी सुननी है भाई मैंने। तो मेरे को बताओ कि बिजनेस में से पहले पहले, लास्ट ईयर में से पहले पहले क्या चल रहा था लाइफ में, क्या चला एग्जैक्टली? भाई एक्चुअली मैं बहुत मतलब एक होती है मिडिल क्लास फैमिली, एक होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो माय फादर इज अ ड्राइवर, ठीक है, शॉफर। तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं था लाइफ में एक्चुअल में करना है क्या चीजें, मुझे कुछ नहीं पता था। अब मैं रियलाइज, जैसे कल आपने बोला कि हेमंत ये कल मतलब कल हमारा पॉडकास्ट हम करेंगे, तो मैंने रियलाइज करा कि यार मेरा चाइल्डहुड बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ना ट्रॉमा में रहा है। उस टाइम मैं एंजॉय करता था, उस टाइम मैं इतनी मेहनत करता था, और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि यार मतलब वो बचपन से ही मेरा माइंडसेट बिल्ड हुआ है। जैसे कि फिफ्थ क्लास के बाद भाई मतलब हमारी बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि हम एक अच्छे स्कूल में लाइक हमारा एडमिशन हो।
तो हम्म, लाइक माय फादर इज अ शॉफर, तो वो जिस कंपनी में काम करते थे, किसी दिन कोई टूरिस्ट आया उनके पास, हम्म, एंड वो कपल थे फ्रॉम लाइक हम्म, ऑस्ट्रेलिया, लाइक तो हम्म। मैं उनको ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड माई भाई ग्रैंड आपकी डैड थे। आपकी ब्रिंग अपब्रिंगिंग सारी कौन सी सिटी की है ब्रो ये? भाई मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। हमारा हम्म, एक बहुत, जितना मेरा भी ऑफिस एरिया, इतना हमारा एक हम्म, रहने का एरिया होता था बस। हम्म, हम्म, तो जिसमें मतलब हमारा एक बेड लगा हुआ था, जिसमें हम्म, मेरे दोनों सिबलिंग्स ऊपर सोते थे, मैं, मेरी हम्म, मॉम और मेरे डैड, हम नीचे सोते थे, क्योंकि मैं हम्म, छोटा था तो स्पेस ज्यादा नहीं ले पाता था। हम्म, और जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब हम्म, प्रॉब्लम होती है सोचने के बारे में हम्म, कि यार मैं हम्म, कहाँ से। वो मेरे डैड की भी गलती नहीं है, मतलब उनके हम्म, डैड ने जो उनको दिया, उन्होंने वहां से हम्म, करके हमको अपना बेस्ट दिया। एंड हम्म, जैसे मैंने बताया कि जब फिफ्थ क्लास के बाद, हम्म, फिफ्थ क्लास हम्म, तक तो प्राइमरी स्कूल था ब्रो, बहुत छोटी थी हम्म, स्कूल था। सिक्स क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि एक टूरिस्ट मिले मेरे फादर की हाँ जी, कंपनी में, राइट। हम्म, तो जिस हम्म, कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार मतलब वो राज करते थे, तो फॉरेनर्स का ना हम्म, ज्यादा नेचर को लेके ना वो रहता है कि कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। हम्म, तो मेरे फादर का नेचर ना स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। ऑल्दो हम्म, वो भी मतलब इतने इंटेलिजेंट थे, बट वो भी लाइक ड्यू टू हम्म, फाइनेंशियल पढ़ नहीं हम्म, पाए आफ्टर 8। तो उन्होंने सोचा हम्म, कि यार इनके बच्चों को मैं स्पॉन्सर करती हूँ स्टडीज, एंड हम्म, दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अभी भी बात होती हम्म, है। हम्म, तो हम्म, उन्होंने मेरा सिक्स क्लास में एडमिशन कराया। एंड ब्रो, हम्म, मैं प्राइमरी स्कूल से वहां पे जाना, आई डोंट हैव एनी एथिक्स, मैं इतना डरा हुआ। और हम्म, मतलब आप एक, अब सोचो भाई, अब दिल्ली के किसी, वो दिल्ली का मेरा भाई टॉप 10 स्कूल में आता है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, वहां से उठ के वहां जाना, उस टाइम पे चीजें देखना कि यार बच्चे इतने अच्छी अच्छी गाड़ियों में आ रहे हैं, स्कूल हम्म, बसेस में आ रहे हम्म, हैं। एंड मैं सिक्स क्लास से ही भाई मैं अकेला स्कूल आने लग गया था। हम्म, एंड हम्म, भाई मेरे घर से मेरा जो स्कूल था, इट्स ऑलमोस्ट भाई 2 घंटे का रास्ता था। मैं हम्म, पहले घर के यहाँ से 5 रुपए का ई रिक्शा पकड़ता था, हम्म, वो मुझे एक जगह हम्म, उतारता था। वहां से मैं हम्म, 10 रुपए का ऑटो पकड़ता था, वहां से फिर मैं मेट्रो पकड़ता था, और मेट्रो हम्म, से उतर के मैं भाई 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करता था। मुझे एक्चुअली अपने हम्म, फादर की याद हम्म, आ गई, मुझे हम्म, बोलते थे हम्म, पैदल चल के जाते थे। तो हम्म, ये रूटीन भाई मेरा मतलब 6 साल तक चलता रहा। और हम्म, स्कूल में मतलब मेरे काफी अच्छे स्कूल्स में जितने भी दोस्त थे, उनकी स्टडीज तो उनके फादर हम्म, या मॉम डैड करा रहे थे। तो हम्म, मुझे ना कहीं मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियसली वो चीज में रहा कि यार कभी ना मेरे दोस्त मेरे घर नहीं आ जाए यार, हम्म, क्योंकि मैं हम्म, तो एक छोटे से रेंट के रूम में रहता हूँ। अब तो लोग हम्म, फ्लैट में रहते हैं, उस टाइम पे तो बहुत छोटा सा कमरा था। हम्म, तो वो कॉन्शियसली मेरे माइंड में था कि यार इनको पता ना चल जाए कि मैं रेंट पे रहता हूँ। हम्म, दूसरी चीज, यार ये मेरे घर नहीं आ जाए, और ये नहीं पता चल जाए हम्म, कि मेरे फादर शॉपर है, क्योंकि हम्म, यार फिर ना मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं हाँ, हाँ, इन सोसाइटी के साथ बैठ नहीं पाऊंगा। हम्म, तो ये चीज रही है भाई, स्कूल में बुली भी बहुत ज्यादा किया गया है इस हम्म, चीज के लेके, क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ, और मैं स्कूल ट्रिप्स में इतना जा नहीं पाता था चीजों को लेके। हम्म, बट एनी हाउ हम्म, मेरे पेरेंट्स से जितना हो सकता था मुझे करा। एंड हम्म, स्टडीज में नाइन्थ तक भाई मैं ठीक था, नाइन्थ के बाद हम्म, ट्वेल्थ में मैं थोड़ा वीक हो गया था, मेरा ग्रुप चेंज हो हम्म, गया था, जैसे धीरे धीरे मैं हम्म, ग्रोन अप हो रहा था, लाइक हम्म, स्कूल टाइम पे रिलेशनशिप एंड ऑल थिंग्स। हम्म, तो उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, दोस्तों के साथ चिल करना, तो फिर मैं बहुत ना बैक बेंचर हो गया था स्कूल में। हम्म, तो हम्म, बट अंदर से ये था कि यार कभी ना जॉब का कुछ थिंक नहीं आया, सोचा था बिजनेस करूंगा, बट ये नहीं पता था करना हम्म, क्या है भाई। हम्म, हम्म, तो वहां से ग्रोन अप होके भाई ट्वेल्थ क्लास मैंने क्लियर करी। ट्वेल्थ क्लास के हम्म, बाद मुझे नहीं पता, समहाउ मुझे आया कि आइडिया यार जिम ट्रेनर का कोर्स करते हैं, क्योंकि हम्म, मेरे जो बड़े भाई के जो दो दोस्त थे वो जिम में हम्म, जॉब करते थे, मतलब कहीं पे। हम्म, तो मैंने सोचा यार, और मैंने उस टाइम पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, उस टाइम पे गुरुमान जी बहुत फेमस थे। हाँ, मैंने गुरुमान जी की यस, वीडियोस देखी बहुत सारी। उन्होंने बोला कि भाई बिना सर्टिफिकेशन के कुछ नहीं होगा जिंदगी में। मैंने बोला ठीक है, हम्म, लेट्स डू दिस फर्स्ट। मेरे पे इतने पैसे हम्म, नहीं थे कि भाई मैं एस से स्टार्ट करूं, क्योंकि एस का हम्म, कोर्स उस टाइम पे 70,000 का था, 2018 का बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, 6 years बैक, हाँ, तो मेरे मॉम ने एनी हाउ जैसे तैसे करके, क्योंकि भाई फैमिली ट्रेनर बनने के लिए भी अलाउड नहीं करती, वो बोलेंगे क्या फ्यूचर है, राइट। 100%, तो और फिर उन्होंने जैसे तैसे 35,000 रुपीज मुझे दिए, और हम्म, 35,000 रुपीज मैंने इंस्टीट्यूट में दिए। और भाई हम्म, इंस्टीट्यूट में देने के साथ साथ मैंने मतलब वहां से सर्टिफिकेशन करी। और मेरे घर से भाई वो जो एरिया मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, साउथ ईस्ट हम्म, दिल्ली, और वो था हाँ, भाई वेस्ट दिल्ली, वहां से पूरा 2.5 घंटा मुझे डेली मेट्रो में जाना पड़ता था। तो सुबह मैं ओके, 6 बजे उठता था, हम्म, 8:30 9 बजे वहां पहुंचता था मैं, 2.5 घंटे ट्रैवल करके, हम्म, ठीक है। जिसमें मैं मील वील घर से लेके जाता था। एंड वो हम्म, सर्टिफिकेशन मैंने तीन तीन महीने में बाद ना 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर हम्म, आप नहीं, 2 महीने बाद एक अटेम्प्ट होता है, एक होता है 1 महीने रिवीजन चलेगी। हाँ, तो मैंने हम्म, सोचा चलो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो बढ़िया है, वरना सेकंड में तो पता नहीं होना हो, तो मैंने फर्स्ट हम्म, अटेम्प्ट में हम्म, क्लियर कर लिया था। उसके हम्म, बाद उसके बाद भाई जॉब मिलने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जॉब मिलने की हाँ कहानी जी क्या है, बताओ, क्योंकि मेरे पे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज कभी रही नहीं, मेरे हम्म, हिसाब से मैंने ना हम्म, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जा जाके।
कि भाई हाँ। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। यस। तो ऐसी दो लोग थे जिन्होंने क्लासिक फिटनेस से कोर्स किया था मेरे दोस्तों ने, एस का, ठीक है, उन्होंने काफी अच्छी स्टडीज करी। तो उनके पास ना जॉब की वैकेंसी आती थी उनके ग्रुप में कि यार इस जिम में जॉब लगी है, कोई जाएगा क्या करने, होता नहीं था भाई पहले, या अभी भी होता होगा, राइट। तो मेरे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार मुझे ना यहाँ से ऑफर आया है, और क्या बोलते हैं, पर मेरा मन नहीं है, 8,000 रुपये दे रहे हैं। तो मैंने ऐसी बातों में पूछा, मैंने कि भाई कहाँ से ऑफर आया है, अच्छा यहाँ से, अच्छा अच्छा बढ़िया भाई, ठीक है। भाई मैं नेक्स्ट डे वहां पहुंच गया उनकी बात सुन के, ठीक है, ये समझ गया। हमारे, यस। हाँ एटीएफ हमारे जो एनी टाइम फिटनेस है, यहाँ मैं चले गया। तो मैं गया, और ऐसे करके मुझे कुछ नहीं पता था इंटरव्यू में क्या प्लान करते हैं। एक भाई एक सिंगल पेज का सर्टिफिकेट, वो बायो वो होता है जो सीवी होता है, वो बनाया, गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, फर्स्ट राउंड लिया, नॉलेज मुझे अच्छी थी, फर्स्ट राउंड लिया, सेकेंड राउंड लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हम तो इवनिंग शिफ्ट के लिए हमें बंदे चाहिए। मैंने कहा यार इवनिंग तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरे घर से नॉट प्लेस है 27 किलोमीटर। और मेन चीज उस टाइम मेरे पे ना कोई स्मार्टफोन, क्योंकि फैमिली कंडीशन नहीं थी भाई, दूसरी हाँ चीज जी। ना मेरे पे कोई व्हीकल की मैं उनकी तक जा सकूं। ठीक कि है। मैंने कि सर इवनिंग तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इवनिंग में रात को ना भाई उनकी शिफ्ट थी, क्या बोलते हैं, 3 to 12। हम्म। और भाई मेट्रो हम्म। 11 बजे बंद हो जाती, मैं घर कैसे आता, तो मैंने मना कर दिया। हम्म। उसके बाद भाई आई ट्राइड मिनिमम मिनिमम, मेरी फर्स्ट जॉब मिलने से पहले मैंने कम से कम 25 से 26 जगह इंटरव्यू दिया। हम्म। एंड वो मुझे रिजेक्ट भी नहीं करते थे, बोलते थे आई लेट यू नो। हम्म। तो मैं हम्म। सोचता था यार ये बता क्यों नहीं रहे, मतलब कुछ हम्म। और समझ कुछ गया। कमी है तो मुझे बताओ, मैं ठीक करूंगा उस चीज पे, मैं डेफिनेटली हम्म। काम करूंगा। उन्होंने कभी कुछ हम्म। बताया नहीं। ऐसे कर करके भाई 6 महीने बाद मैंने जिस जिम में इंटरव्यू दिया था फर्स्ट टाइम, हम्म। हम्म। एनी टाइम फिटनेस नॉट प्लेस, मैं उस जिम में दोबारा गया। हम्म। मैंने थोड़ा अपना लुक चेंज करा, क्लीन शेव करा, हम्म। एंड हम्म। सारी चीजें करी, एंड उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। हम्म। तो उनके जो वहाँ के रीजनल मैनेजर थे जिम के, हम्म। उन्होंने मुझे हम्म। बोला ब्रो तू वही है ना जो 6 महीने पहले आया था, मुझे याद है। हम्म। हम्म। मैंने कहा हाँ सर, मुझे एक्चुअली जॉब की जरूरत है, इसलिए मैंने हम्म। सोचा लुक चेंज कर लूँ कि आप वापस ना भेज दो। तो कह रहे हम्म। देख हमने हम्म। तुझे लास्ट टाइम भी सिलेक्ट किया था, इस टाइम भी किया था, इस टाइम में मॉर्निंग शिफ्ट है। और भाई मुझे अभी तक याद है 2029 3rd अक्टूबर की बात है ये, हम्म। कि हम्म। उन्होंने बोला कि भाई क्या तू मॉर्निंग जॉब कर पाएगा, हम्म। क्योंकि भाई अक्टूबर के बाद ठंड आना स्टार्ट हो जाती है। हम्म। हम्म। और ये भी अभी भी अक्टूबर चल रहा है, राइट, थोड़ा हम्म। स्मोकी स्मोकी सुबह हो जाता है। हाँ तो जी। उस टाइम पे भाई मेरी मॉम ने जैसे तैसे करके, मेरे ब्रदर ने एक्चुअली जैसे तैसे करके लोन पे लेके मुझे बाइक दिला दी, बुलेट बाइक। हम्म। ठीक है, हम्म। मैंने ले ली, मैं चलो ठीक है बढ़िया, बाइक भी आ गई, हम्म। जॉब भी हो गई। हाँ। तो भाई मेरी शिफ्ट सुबह जो मुझे शिफ्ट मिली थी वो थी भाई 5 AM टू टू हम्म। थर्टी पी एम हम्म। अब मुझे अब रियलाइज होता है कि यार मेरा माइंडसेट उस टाइम पे कितना रेडी था, कि मैं सुबह हम्म। सुबह 3:30 बजे उठता था, ठंड में हम्म। भाई, नहा धो हम्म। के घर से रेडी होके 4:30 निकलता था। 30 मिनट्स में मैं अपनी बाइक पार्क करता था वहां पे जॉब के लिए। हम्म। 5 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, मतलब मेंबर से पहले, गार्ड से पहले, सबसे पहले मैं ही पहुंचता था वहां पे जिम में। हम्म। और मैंने उस प्रोसेस को ना भाई मतलब इतना एंजॉय करा ना, अब मैं रियलाइज करता हम्म। हूँ, उस टाइम पे मैं इतना एंजॉय करा, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया काम का। तो मुझे अगर वो 8,000 रुपये दे रहे थे ना भाई, तो मतलब मैं उनको कसम से 8,000 रुपये की जगह ना मैं उनको 10x वैल्यू दे रहा था। और हम्म। वहां का रूल देखो, दो ट्रेनर्स आपस में बात नहीं कर सकते, आप 9 घंटे तक आप फ्लोर पे नहीं बैठोगे, आप खड़े हम्म। रहोगे। तो भाई मैं नेक्स्ट डे ना मैं जॉब पे गया नहीं, मैंने कि नहीं करूंगा, छोड़ दे भाई इसको, मेरे से नहीं होगा। फर्स्ट डे के बाद, फर्स्ट डे फर्स्ट के डे बाद या के थर्ड बाद डे? है, फर्स्ट डे के फर्स्ट बाद, डे के ओके। बाद है, मैंने कि नहीं होगा ठीक है। भाई, मुझे फीवर हो गया था, मैं 9 घंटे कभी खड़ा हुआ ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, गॉट इट। समझ गया। क्योंकि भाई आप ये देखो, मैं हम्म। सुबह 3:30 बजे उठा, जिम 5 बजे हम्म। पहुंचा, 2:30 बजे शिफ्ट हम्म। खत्म करी, आधा घंटा हम्म। रेस्ट लिया, 3 से 5 वर्कआउट किया, 5 बजे वहां से निकला, 6:30 7 बजे मैं घर आया ट्रैफिक के बाद, 8 तो बजे नौ मैं आके सो घंटे गया। आप बैठ ही नहीं सकते बेसिकली। आप मशीन को टच भी नहीं कर सकते, और दो कोचेज आप बात भी नहीं कर सकते। उन्होंने ये बिल्ड हम्म। करा सिस्टम मेरे टाइम फिटनेस ने। हम्म। तो मेरे हिसाब से हम्म। भाई वो मैं अब रियलाइज करता हूँ कि वो चीजें ठीक भी थी, जिससे ना मेरे अंदर डिसिप्लिन बहुत बिल्ड हुआ। हम्म। तो मैं हम्म। नेक्स्ट डे गया नहीं भाई, तो नेक्स्ट डे जो उनके मैनेजर थे, ही कॉल्ड मी, उनका नाम हरीश चंद्र जोशी है, उन्होंने मुझे बहुत हम्म। सपोर्ट किया। तो हम्म। ही कॉल्ड मी कि भाई तू आया नहीं?" मैंने कि सर तबीयत ठीक नहीं। कह रहा नहीं, ये ना एक्चुअली मैं 100 टाइम सुन रहा हूँ, 20 to 100 कोच होगा जिसने मुझे ये हम्म। बोला। वो कह रहा देख, हर कोच ना यहाँ के बाद चीजें छोड़ देता है, तू आ गया तो तेरी लाइफ बन जाएगी। हम्म। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कल ही आता हूँ। हम्म। फिर मैं उठ के नेक्स्ट डे ठीक है। गया, वही रूटीन, साढ़े हम्म। तीन बजे वाला। फॉग हो रही है भाई, एक दो बार तो हम्म। एक्सीडेंट होने से भी बचा, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं था। हम्म। और उस हम्म। टाइम पे जो स्टैंडर्ड्स बाइक आती थी बुलेट की भाई, उसमें ना पेट्रोल का वो भी नहीं होता था कि फ्यूल है नहीं है उसमें चेक हाँ। करने का। हम्म। उसमें हम्म। ऐसे हिला हिला के चेक कर रहे हम्म। हैं। हम्म। हम्म। तो फिर वो जर्नी चलती रही, तो सर को लगा कि यार इसमें टैलेंट है। जनरल ट्रेनर से उन्होंने मुझे ना 3 महीने बाद बोला कि तू फ्लोर से 5 पीटी पकड़ के लिया, मैं तुझे पीटी बना दूंगा। हम्म। मैंने अगले दिन हम्म। ऐसी
क्लाइंट जनरल क्लाइंट को कि यार मैं ना पीटी में प्रमोट हो रहा हूँ ऐसे कर करके, तो लाइक वुड यू माइंड कि हम ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ हाँ, कि मेरे क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी अच्छी फीडबैक थी जिम में। तो उन्होंने मुझे वहां से फिर पर्सनल ट्रेनर बनाया, बट पर्सनल ट्रेनर बनाने के बाद ये ड्रॉबैक था भाई, मेरी 8,000 रुपए की सैलरी भी मेरे से छीन ली गई। अब तू जितना कमाएगा वो इससे करेगा। तो वहां ठीक से है। धीरे धीरे सेशंस कर करके मैंने थोड़ा सीखा, मेरे मैनेजर ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है भाई, तू कर, मेहनत कर, आगे कर, ऐसे कर करके भाई फिर वहां से वो जर्नी मैंने करी, और वहां पे मैंने मैक्स, मुझे लगता था मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, वाह, 22,000 रुपीज मेरे मैक्स बने थे वहां से। एंड उसके बाद रिसेंटली भाई कोविड हिट होने से पहले मेरे माइंड में आया कि यार लेट्स रिजाइन। ऐसी मुझे नहीं पता था कि क्या कोई रीजन करूंगा। नहीं था। नहीं, वहां पे भाई एक मेरे क्लाइंट आते थे, मतलब मेरे हम्म, पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट नहीं थे, बट उनको ना एनी हाउ मेरी लाइफ में ये चीज रही है भाई, मुझे टाइम टू टाइम ना अच्छे लोग गाइड करने वाले मिले हैं। हम्म, तो वहां पे क्लाइंट आते थे, वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है। उन्होंने मेरे में पोटेंशियल देखा। हम्म, कह रहा भाई तू ये क्या कर रहा है, तू हम्म, एक काम कर, तू ना कोविड कोविड स्टार्ट हो गया था, लोगों पे जॉब नहीं थी और मेरे पे भी इतनी हम्म, टेंशन नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तो एक काम कर, तू मेरे से मिल। सुशांत नाम है हम्म, उनका, मैं उनको हम्म, बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने हम्म, बोला मिल। तो उन्होंने मुझे बोला एक काम कर भाई, तू ना ऑनलाइन ट्रेनिंग दे। हम्म, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब कि भाई तू वीडियो कॉल पे लोगों को करा, फ्री करा। तुझे हम्म, यहाँ से 8,000 सैलरी मिलती है ना, तुझे दस हम्म, हजार रुपये मैं दूंगा, तू घर बैठ और तू कल ही रिजाइन डाल। हम्म, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिखा कि यार ये जिम में ग्रो नहीं कर पाएगा बंदा। हम्म, तो उन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई, उन्होंने मुझे बेकायदा 10,000 रुपये दिए। ठीक है। हम्म, और हम्म, उन्होंने बोला कि अच्छे लोगों से कांटेक्ट बना और अच्छी जिम में वर्कआउट कर, क्योंकि भाई हम तो वहां पे एम्प्लॉय थे तो हमारा वर्कआउट फ्री था। बट अगर हम्म, एनी हाउ मैं कोई दूसरी एनी टाइम ज्वाइन करूंगा तो यार आई नीड भाई 12 to 15,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, राइट। हाँ, तो हम्म, वो पैसे भी उन्होंने दिए, कह रहा ले भाई ये वाह, 15,000 भी जिम के तू रख। और उन्होंने हम्म, बोला कि अच्छे जूते खरीद, अच्छी हम्म, जिम में जा। मैं तो हम्म, नहीं आ सकता बट अच्छे लोगों से कांटेक्ट बना, मुझे नहीं पता था उस हम्म, टाइम कांटेक्ट बनाना इतना इंपॉर्टेंट होता था। वहां पे हम्म, लोगों को पता चला मैं वर्चुअल ट्रेनिंग कराता हूँ, ऐसे करके मैंने लोगों को फ्री ट्रेनिंग दी। फ्री में से हम्म, भाई मैंने फिर बोला कि यार मैं ना 2,000 वाले बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 50 में हम्म, से आउट ऑफ 30 लोगों को मैंने फिल्टर आउट किया। हम्म, मैंने कल्ट का देख देख के सीखा कि यार कैसे वीडियो हम्म, क्योंकि सबसे पहले भाई कोविड में उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। हम्म, देन उसके बाद मैंने 20 लोगों में से बोला कि यार आई एम स्टार्टिंग 1-on-1, सबको पर्सनल मैसेज हम्म, करके। हम्म, तो वहां से मैंने 3,500 चार्ज करता था भाई मैं पूरे महीने का। ठीक है। हम्म, सैटरडे संडे छुट्टी और 5 दिन हम्म, वर्कआउट। वहां से मैंने 5 लोगों को फिल्टर आउट करा, तो वहां से कर करके एक मेरी क्लाइंट बनी थी भाई यूके यूके की। हम्म, तो वो एक क्लाइंट को मुझे पता नहीं था उस टाइम पे मेरी सर्विस एक्चुअल में अच्छी, मैं इतना एफर्ट डालता हूँ। हम्म, उस एक क्लाइंट को करते करते भाई मेरे पास मिनिमम मिनिमम वहां से 3-4 क्लाइंट्स आ गए थे, वर्ड हम्म, ऑफ माउथ। तो ठीक है। वहां से कर करके भाई फिर थोड़ा जब आपसे मेरी टीम से आप से मेरी हम्म, बात हुई थी, तो वहीं से मैंने थोड़ा बहुत करके फाइनेंशियली मैंने स्टेप लिया कि भाई करना तो है, नहीं करूंगा तो यहीं फंस जाऊंगा, करूंगा तो आगे बढ़ हम्म, जाऊंगा। हम्म, डू और डाई, तो मेरा माइंडसेट ना भाई, मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे बचपन से ना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बिल्ड होने लग गया था। अगर मैं आज हम्म, से 4-5 साल पहले भी अपना इंस्टाग्राम खोलूँ और मैं आर्काइव स्टोरीज में देखूँ, तो हम्म, मैं यही मोटिवेशन पोस्ट डाल देता कि यार वन डे आई डू दिस थिंग। ठीक है। अभी हम्म, मैंने कल हम्म, रियलाइज करा कि अभी मैंने ना 2 साल पहले भाई थार के आगे फोटो खिंचाई थी। हम्म, और अब मैं कहता हूँ कि यार थार मुझे नहीं पसंद। मतलब ये भी भाई एक yes, सीन है लाइफ का। हम्म, यार हाँ, this हाँ ये happens all चीज the time। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी आपने। गूजबम्स आ गए मेरे को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार फर्स्ट जॉब इज 8,000 पर मंथ। इस भाई। लास्ट 2 मंथ्स के एवरेज ले जाए तो ऑन एन एवरेज यू आर मेकिंग 30,000 रुपीज इन वन डे। 8,000 अ मंथ टू 30,000 रुपीज अ डे। एंड दिस, इससे भी ऊपर एक्चुअल में नंबर। एंड भाई इसमें एक और चीज मेरे को बड़ी वो इंस्पायरिंग लगी कि यार आप लिटरली लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपका बिजनेस आई थिंक 50 से हम 1.8 लाख 1.6 लाख के आसपास सिक्स ले गए 1.6 थे। भाई। उसके बाद फर्स्ट थिंग यू डिड वाज यू बॉट योर डैड अ कार। यस मुझे भाई। वो याद है, आई थिंक 4-5 मंथ्स के आसपास था। आपने कहा था कि यार ईएमआई पे लिया मैंने कार, बट यू नो डैड बीइंग शॉफर वर्सेस हिम गेटिंग हिज ओन कार। वाओ ब्रो। भाई उसके उसके पीछे की बाद स्टोरी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बताओ। पीछे की स्टोरी ये थी कि मेरा ये था कि यार मेरे फादर ने मतलब 25-30 हम्म, साल एक गाड़ी चलाई है, मतलब कंपनी हर हम्म, 8 साल में गाड़ी चेंज करती थी। हम्म, तो हम्म, ठीक है इनको इस, अब मेरे हिसाब से पहले ये था कि चलो ठीक है इन्होंने हमारे लिए इतना करा है, मतलब हम्म, भाई ऑल दो मतलब वो एक महीने में मोस्टली वो 25 दिन ना उन्होंने भाई अपने बाहर गुजारे हैं। हम्म, कि आप ड्राइवर का आपको पता ही भाई, मतलब 500 रुपये हम्म, यहाँ से टिप मिल गई तो रूम में रह लिए, वो करके उन्होंने पूरी हम्म, लाइफ हमको दी है कि यार हम्म, मेरे बच्चे कुछ कर जाए। उनके हम्म, पास अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने हमारी स्टडी स्पॉन्सर की थी।
उन्होंने उनको बोला भी था अपनी फैमिली को ही छोड़ दे, लेट्स मूव टू ऑस्ट्रेलिया, वी हैव सो मच वेल्थ, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। बट उन्होंने बोला नहीं यार, मेरी फैमिली है, आई कैंट लीव। तो उन्होंने वो करके फिर मैंने देखा यार मेरे फादर मतलब इतने ज्यादा मतलब एज भी हो गई, 55 के हो गए हैं, एंड 30-35 साल हमको दिए हैं, मतलब मेरी फैमिली को ग्रो करने में, सारी चीजें करने में, तो यार इनके लिए कुछ करते हैं। तो देन मैं मेरे भाई ने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, इनको कार गिफ्ट करते हैं, अपने शौक तो बाद में पूरे हो जाएंगे, इनका पहले कुछ स्टार्ट करते हैं। तो अब ये है कि भाई अभी भी वो सेम वही काम कर रहे हैं शॉफर का, बट नाउ वो खुद ऑनर है। तो उनकी मैंने कंपनी का नाम भी सेट करवा दिया, प्रीमिरो ट्रैवल करके, स्पेनिश में। वाह। ठीक है, तो मैंने कि ठीक है, अब आप अपना काम कर रहे हो और 2-3 साल बाद आप ये छोड़ देना, देन इसको मैं टेक ओवर करूंगा और मैं इसको अपनी तरफ से स्केल करके आपको दे दूंगा। ठीक है पापा, आप ये काम करो, आई विल मैनेज, ऐसे करके। वाह वाह, दिस इज ग्रेट ब्रो। एंड ब्रो, आपकी मैंने थीम पे एक चीज नोटिस करी पूरे उसमें। आपने मतलब जनरली कोई ऐसी स्टोरी की बात होती है, लोगों को जनरली बहुत बार ये चीजें याद रहती है क्या चीज नेगेटिव हुई, बट आपने पूरी स्टोरी में एक चीज कोई नेगेटिव नहीं बोली। आप ये बता रहे हो कि यार इन्होंने मेरे को ये हेल्प करी। इट्स लॉट ऑफ दिस हैज टू डू विद हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड आल्सो, राइट। बहुत ट्रू, बार वेरी होता है ट्रू। जैसे यार बच्चे पेरेंट्स को कहते हैं यार आप लोगों ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। आई थिंक आपने मेरे को थोड़े दिन पहले बताया था कि यार आपकी एजुकेशन 12th के बाद आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। यस भाई, तो यस। हाँ, बहुत बार होता है जैसे आई सीन सम चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए, वर्सेस योर माइंडसेट ब्रो। दिस मेक्स मी सो प्राउड ऑफ यू। एंड दिस समथिंग व्हिच नाउ आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी आई एम लाइक यार मैं कितनी बार ये चीज आपको करते हुए देख चुका हूँ, व्हिच इज भाई वेरी वेरी गुड। भाई अब मेरी भी, मुझे लगता है मेरी खास बात ये भी है कि मुझे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। 1% आगे आगे, अदरवाइज नहीं आते। क्योंकि वो इनबिल्ट एटीट्यूड ऐसा है ना कि यार मुझे तो करना है तो भाई करना है। क्योंकि मेरे ना, मुझे एक चीज रियलाइज हो गई थी 1-2 साल पहले कि सामने वाला जो भी चीज अचीव करके बैठा है, चाहे उस टाइम मेरे पे कुछ नहीं था, वो एक इंसान ही है। तो एक इंसान हाँ, वो कर सकता है, तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता। वेरी गुड माइंडसेट। तो एंड भाई स्टार्टिंग से मैं थोड़ा गाड़ियों का भी शौक था। तो हमारा था कि मतलब हमारे जिम ऑनर जब आते थे, वो फोन करते थे कि भाई नीचे ट्रेनर्स को भेज दो, सामान पकड़ लेंगे। एंड मैं ब्रो भाग के जाता था कि उनके पास मर्सिडीज थी, सी क्लास की, भाई मुझे देखनी है क्या है। तो बाहर से देख के मैं ओ माय गॉड, वाह। मतलब नेगेटिव चीजें भी बहुत हुई है भाई। मतलब आपको पता है जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनके साथ पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैंने फर्स्ट जॉब, एनी टाइम से भी पहले एक जॉब थी, वो भी 8,000 की थी सेम। वहां भी मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि भाई मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करता था। एंड उस टाइम पे आपको पता है पीक वीक चल रहा था, तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना। हाँ। उस टाइम पे मैं अपना 8 घंटे का जॉब भी दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार 2 घंटे तुझे डेली वर्क, वो क्या कहते हैं, पार्ट टाइम करने हैं। एंड पार्ट टाइम 1 महीने करने के बाद कहते हैं कि यार ऑनर ने तो मना कर दिया पैसे देने से, अब बताओ क्या। मुझे नहीं पता, मेरे नेक्स्ट स्टेप ये आया कि मैंने कि भाई मुझे यहाँ काम नहीं करना है, इन लोगों में एथिक्स नहीं है। हाँ, तो मैंने वो ऑब्वियसली। छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एनी टाइम ज्वाइन किया, फिर एनी टाइम भी छोड़ दिया था भाई। तो नेगेटिव तो बहुत चीजें हुई है। मतलब वहां का जो कोचिज का इन्वायरमेंट था, मुझे अभी भी याद है भाई, 3-4 साल पहले मैं उनको बोलता था, मैं उनसे ज्यादा उस टाइम पे भी कमा रहा था। मतलब वो 12 कमा रहे थे तो मैं 20 पे आ चुका था ऑनलाइन ट्रेनिंग मिला के। तो मैं उनको बोलता था भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग इज द फ्यूचर। और मैं वहां पे सबसे यंग था भाई, जब मैंने ज्वाइन किया था दैट टाइम आई वाज 19। अभी मुझे मतलब 2018 को मिला के 19 का था मैं। और मैं किसी को कुछ बोलता तो मुझे पागल समझते थे कि ये तो पागल है, क्या कर लेगा। और अब वो मुझे देखते हैं तो चलो बल्ले बल्ले अब तो। दिस इज वेरी गुड ब्रो। चलो, अब लास्ट ईयर डैड को कार गिफ्ट करी, अभी रिसेंटली खुद कार ली, कुछ महंगे वाली कार लेने वाले थे बट वो आपने कहा नहीं, आई वांट टू इन्वेस्ट दैट इन माय बिजनेस। वो कहानी सुनाओ प्लीज, दिस इज लिटरली लास्ट मंथ। भाई एक्चुअली मेरा प्लान तो ये था कि अगर मैं अपने हिसाब से बजटिंग सेट करता तो आई कैन बाय 50-60 लाख रुपीज की कार भी। बट फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक और भी हो जाएगा, अच्छी गाड़ी भी हो जाएगी, तो लेट फॉर एग्जांपल बाय करते हैं स्कॉर्पियो एन। आपसे मेरा डिस्कशन होता है इस हाँ चीज को जी, लेके। हाँ। फिर मैंने सोचा यार मैं इस चीज पे इतना इन्वेस्ट कर दूंगा, 1 साल बाद जैसे कि मैं अपना विजन देखूंगा, 1 साल बाद मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर मैं बोलूंगा इसको बेच के दूसरी लो। तो मैंने कि दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग। एक सस्टेनेबल और स्टेबल चीज बनाते हैं, ठीक है। और मैंने कॉस्ट कटिंग करी भाई 6-7 लैक्स की। मैंने बोला यार ये पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ से जितना गाड़ी मैं खरीदने की सोच रहा हूँ 20-21 लाख की, फ्यूचर में जाके ये तो मेरा मंथली का हो जाएगा, आगे 6 महीने बाद जाके उठा लाऊंगा जब मन करेगा। तो अभी पैसे री इन्वेस्ट करते हैं, प्लस अभी पैसा अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आपको पता अक्टूबर नवंबर है स्लो मंथ्स, बट स्टिल हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन टीम को नहीं हटा सकते। हाँ, तो 100%। तो वही पैसे जो मैंने इन्वेस्ट करे थे, वही पैसों से भाई मैं अभी सरवाइव कर रहा हूँ अच्छे से।
कोई लोड भी नहीं है कि मैं टीम को हटाऊं और फिर बोलूं कि नहीं यार मेरे पे कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक गाड़ी भी हो जाएगी, चला भी लूंगा, अच्छी भी है, बढ़िया गाड़ी है, 12-13 लाख रुपए। मेरा ड्रीम था कि भाई मैं स्विफ्ट लेके मौज करूँ पूरी जिंदगी भर, और अभी मैं 12-13 लाख और 20 लाख की गाड़ी में इतना सोच रहा हूँ। तो चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। एंड मेरी मम्मी ने भी बोला कि बेटा भी इट्स बीन ओनली 7-8 मंथ, तू बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो थोड़ा आराम से चल। तो ठीक है, मैं वेरी गुड माइंडसेट। ठीक है, तो वेरी गुड मैं सोच माइंडसेट रहा एंड हूँ कि लुकिंग एट योर ग्रोथ। मुझे एक्चुअली उस दिन की बात याद आ गई। यू वर देयर फॉर आवर चंडीगढ़ इवेंट ये एंड सही। आप जी वैगन की गेड़ी मार के आए थे आप लोग। फिर आपने कहा कि भाई जी वैगन लेनी है मैंने। जनरली ना I'm that kind of person who would always say 100% bro you can do it। हर किसी को मैं ये बोलूंगा। बट आपके केस में ना मेरे दिमाग में हाँ नहीं वाली थॉट नहीं है। मेरे थॉट है कि यार हेमंत को कितना टाइम लगेगा। आई थिंक आई सेड 2-3 years समथिंग लाइक दैट। बिकॉज आपके मामले में आई हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट आफ्टर सीइंग यू पुट इन द वर्क दैट मेरे दिमाग में हाँ नहीं वाली चीज नहीं है। रादर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हाउ मच टाइम विल हेमंत टेक। तो एग्जैक्टली वो ब्रो, मेरे को एग्जैक्टली। एक्चुअली उस दिन का याद आया। एंड हाँ, ठीक है भाई। आपने बोला था कि हाँ इतना जी। टाइम लगेगा यस। सिखाने की। कोई नहीं भाई, आई कैन वेट। चलो ठीक है, जी वैगन आएगी। एक्साइटेड फॉर योर जी वैगन गेड़ी। ओके भाई। तो जब यार फिटनेस बिजनेस हमने स्टार्ट किया, ऑनलाइन फिटनेस बिजनेस, तब आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी ब्रो? मतलब कि इफ यू लुक बैक नाउ, उस टाइम तो समझ नहीं आता कि भाई क्या स्ट्रगल है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या थी उस वाले पार्ट पे, स्पेशली जब आप एफबीए ज्वाइन करने की सोच रहे थे या एफबीई स्टार्ट करने की सोच रहे थे, तो बताओगे प्लीज। भाई सबसे बड़ा स्ट्रगल उस टाइम पे ये था कि हमको पता ही नहीं था कि हमने बस ये सुना था ब्रांड बिल्डिंग होती है, बट एक्चुअल हम्म। में डीप डाउन जाके पता नहीं था कि ब्रांड बिल्डिंग होती क्या है। हम्म। दूसरी चीज ब्रांड का लोगो। तीसरी चीज हम्म। टारगेट किनको करना है। क्योंकि हम्म। अगर मैं अभी अपने आप को भाई 7 महीने पहले, 8-10 मैंने 1 साल पहले जाके देखूं, तो हम्म। उस टाइम पे ये था कि यार हम ना ज्यादा ब्रांड से ज्यादा अट्रैक्ट भाई हम नंबर की तरफ हो रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। हम्म। कि यार आई वॉन्ट टू मेक फर्स्ट 6 फिगर, एनी हम्म। हाउ, कुछ भी बोलो कर दूंगा, वो करना था। हम्म। बट हम्म। वो मेरे हिसाब से वो मेरी मिस्टेक थी भाई। हम्म। ऑल दो हमको धीरे धीरे सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि यार एक एक स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, स्टेप वाइज। हम्म। ठीक है, हम्म। जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग हो गई भाई। हम्म। कंटेंट क्रिएशन स्टार्टिंग से मैं भाई आपके मुंह से सुनते आया हूँ 2-3 साल से। हम्म। कंटेंट क्रिएशन उसको मैंने बहुत अंडररेटेड समझा। ठीक है, हम्म। ऑल दो मैं उस पर भी काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ हम्म। उसको। बट वो भाई गेम चेंजर है, क्योंकि आपका कंटेंट ही बताता है आपका ब्रांड किसके बारे में है। आप हम्म। अगर बायो, जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई मेरी बायो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेगा, हम्म। आपने सिखाया, वो बायो का अगर कंटेंट ही नहीं है उसके प्रोफाइल पे, तो भाई क्या फायदा। हाँ। यस। दूसरी चीज भाई, सर्विस बिल्कुल जीरो थी। मतलब हम्म। क्लाइंट से चैट कर रहे हैं, प्लान भी प्लान भी व्हाट्सएप पे ही भेज रहे हैं भाई, कहीं से कॉपी हम्म। पेस्ट, कहीं से किसी का कुछ मिल गया, कहीं से किसी का हम्म। कुछ उठा लिया। और हम्म। कुछ नहीं पता था ऑनबोर्डिंग कॉल क्या होती है, रिन्यूअल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था भाई। हम्म। और 3-4 क्लाइंट फिक्स थे, वही आए जा रहे हम्म। थे। हम्म। ये भी नहीं पता था कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये हम्म। सारी चीजें। तो ऑल दो मैंने बहुत, मतलब वहां पे ना एफबीए में आके सबसे बड़ा मेरा फायदा ये हुआ कि मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए। हम्म। जो हम्म। कि यही चीज मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मेरा हम्म। जो एनी टाइम फिटनेस का जो जर्नी था, वहां हम्म। से आई लर्न डिसिप्लिन। उस टाइम लगता था यार ये क्या बंदे 9 घंटे खड़े कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, थंब ये लगा रहे हैं, बट वहां से आई लर्न डिसिप्लिन। एफबीए से आई लर्न की भाई यहाँ पे ना बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एकदम से जंप हम्म। आउट कर दोगे तो बिजनेस बहुत जल्दी डाउन जाएगा। हम्म। तो वहां पे मैंने सीखा कि यार ठीक है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रांड में कलर्स थीम क्या होते हैं, हम्म। कंटेंट बनाना क्या होता है। ठीक है। एंड उस टाइम पे तो टीम बिल्डिंग का कुछ सीन था नहीं। खुद को ये हम्म। था कि यार खुद को, उस टाइम ना भाई कोचिंग मोड था। अगर मैं हम्म। अब अपने आप को देखूं तो अब मैं बिजनेस मोड पे हूँ। हम्म। उस टाइम कोचिंग हम्म। मोड था। हम्म। तो एफबीए में मतलब जितनी चीजें मुझे सिखाई गई, जैसे कि वीकली मीटिंग्स होती थी, जो भी हमारी सारी चीजें, डेली हम हम्म। अपने क्वेश्चंस पुट करते थे। और भाई मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्लाइंट्स लाए कहाँ से। क्लाइंट्स हम्म। ही नहीं पता। आज का हम्म। ये डर था भाई कि उस टाइम पे देखो इतना कम कमा रहे थे, और ये डर था कि यार नेक्स्ट डे क्लाइंट कहाँ से आएगा, या नेक्स्ट मंथ कहाँ से क्लाइंट आएगा। हम्म। हम्म। और आज आज मतलब बिजनेस इतना बड़ा स्केल कर रहा है, टेंशन ही नहीं है कि कोई नहीं भाई, पाइपलाइन फुल है, तू जा नेक्स्ट आएगा। ये था। डेफिनेटली। डेफिनेटली ब्रो। यस भाई। ओके सो नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्पेसिफिक थिंग्स जो आपको लगता है कि यार आपने स्पेसिफिकली अचीव करी है व्हाइल वर्किंग विद अस। ऑल्दो आपने एफबीए टाइप आंसर मुझे ऑलरेडी दे दिया, आपने यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस थिंग। बिकॉज वन थिंग व्हिच आई लाइक अ लॉट इज कि यार आप हमेशा सर्विस फर्स्ट बंदे हो, कि यार आप हमेशा सर्विस की बात देखते हो। एफबीई में ज्वाइन करने के बाद जैसे आपने बोला यार बिजनेस मोड आ गया, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट हैज चेंज्ड? भाई
फर्स्ट थिंग कि देखो, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आपका एक्सेस मिला, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता ये चीज। ठीक है कि आपका एक्सेस मिला, आपसे बात करी। भाई अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आज तक अभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम डील करता हूँ, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप में हो, मेरी फैमिली में हो, चाहे वो मेरे बिजनेस में मेरी टीम को लेके हो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार अगर वाइवेस यहाँ होते तो वो कैसे इस चीज को डील करते। टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं ये सोचता हूँ, मेरे ऑटोमेटिकली मेरे थॉट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं, और मैं उस डील से ना बहुत इजीली चीजें, मतलब उस इजीली मैं लोगों को डील कर पाता हूँ। दूसरी चीज भाई, कम्युनिटी। स्टार्टिंग में जब आपने ये कम्युनिटी बनाई, मुझे लगा यार वन ऑन वन होना था, ये क्या हो रहा है, ऐसे कुछ मेरे मन में थॉट आया। फिर बाद में समझ आया कि यार आप क्या जो सर्कल है, अगर आपका सर्कल ही सही नहीं है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मेंटोर भी आपको वही चीजें सिखा पाएगा लिमिटेड, जो उसको टाइम टू टाइम सिखानी है। बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको खुद कुछ सीखना है, तो भाई आपकी कम्युनिटी पे लोग होने चाहिए जिनसे आप डे टू डे लाइफ में बात करो, उनकी प्रॉब्लम आप समझो, अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ, वहां से सॉल्यूशन लो, और फिर वहां से भाई आपकी कम्युनिटी बहुत बहुत स्ट्रांग गेम है कम्युनिटी का। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, क्योंकि मेरे भाई, मेरा तो लाइफ में ये रहा है कि मेरे आई हैव ओनली टू फ्रेंड्स। ठीक है, एक मर्चेंट नेवी में जस्ट अभी लगा है, एक फ्रेंड जॉब करता है नॉर्मली। तो मेरी एक स्टार्टिंग से आदत रही है, मैं नए लोगों के साथ कभी नहीं बैठता। बट इस कम्युनिटी में आके मुझे ये लगा कि यार उनको भी ग्रो करना है, मुझे भी करना है, तो दिस इज अ ग्रेट चांस टू कनेक्ट विद देम। तो कम्युनिटी का तो भाई मतलब बहुत तगड़ी कम्युनिटी है अपनी जो भी है। मैं तो सबको क्लाइंट कोच, अपनी क्लाइंट्स को भी ये बोल देता हूँ कि भाई इंडिया के टॉप 20 कोच हैं हम तो। That is definitely, you're leading the charts, not just in numbers, खुद की revenue numbers नहीं, more than that, the amount of lives you are changing. And one thing which I like a lot about you is आपको self awareness भी है. Right now, past few months आपने content नहीं किया, still business scale हो रहा है. But I think एग्जैक्टली last भाई। conversation जब हमने आपके business के relation में करी, you were like कि भाई अब content level up करते हैं, because now you are understanding in depth कि भाई यस brand भाई। को और ऊपर कैसे लेके जाना है. And guys, those who are listening to this, content regularly post करो. ये मत, just don't look at it मत कि भाई content इतना regular नहीं है, हाँ just results के basis पे या just marketing के basis पे, because you know in the end we need to build a full system. नहीं, तो भाई उसमें भी भाई, this is उसमें भी भाई आई रियलाइज वन थिंग। हम्म, अगर जैसे मैं आपका आज पॉडकास्ट सुन रहा था कि हम्म, आई विश यार मैंने एक साल पहले किया होता तो आज 10x 5x होता, तो हम्म, मैं सोच रहा हूँ यार आई विश अगर मैंने कंटेंट भी किया होता तो आज गेम हम्म. थोड़ा और स्ट्रांग होता। Definitely, bro. Definitely. All of us are in the learning Yes. journey, I would say. And community वाली बात तो यार यहाँ मैं mention करना चाहूंगा that FBE was the first project of mine. I've had trained by IBS, FBA, FBA, FBA पे भी एक community है. But FBE is the only project जहाँ पे मैंने close knit community बनाई. जब बनाई मैंने 3 months हुआ ना, that's when I realized कि यार how powerful this is. बिकॉज मैं जब इंटरनेशनल कोचेस से लर्न करता था ना, बहुत बार कोचेस कहते थे कम्युनिटी होनी चाहिए वो, मैं यार इंडिया में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एट टाइम्स देयर आर ऑलवेज सम पीपल हु आर सैड विद द सर्विस एंड स्टफ लाइक दैट. बट जो अब नाउ दिस कम्युनिटी इज नो लेस देन फैमिली, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड एफबी आई वाज लाइक यार सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए कोच करूंगा, सिस्टम्स बना दूंगा, देन आई विल डेलीगेट. नाउ आई एम लाइक इस दिस गैंग आई वांट टू कोच देम पर्सनली फॉर द नेक्स्ट few years also. And that is great. And it's like kudos to everyone in the FB community, including you, bro, because Yes, भाई। helping everyone, sharing your wins, उसमें भी I think you guys were the torch bearers in our community also, कि यार तब देख के मजा आया, मैं कहा यार this is great. भाई तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि यार जब आपने FBA ज्वाइन किया, what was the biggest thought which was holding you back, and FBE के लिए अलग बताना मुझे ये आंसर कि what was the biggest thought. भाई एफबीए के टाइम पे सबसे बड़ा थॉट ये था कि यार मुझे चीजें कुछ आती है, मुझे हम्म, इस चीज में थोड़ा प्रोफेशनली होना है, प्रो बनना है। हम्म, प्रो बनने के साथ साथ थोड़ा ये था कि यार वही सेम भाई, थोड़ा फाइनेंशियल का तो था, हम्म, बट मुझे अब थोड़ा प्रोफेशनली इस चीज को करना है, हम्म, क्योंकि माइंड में था कि यार अब क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम्म, हम्म, मैं तो उस टाइम पे 30,000 को भी इतना सोचता था, वाह ग्रेट, क्या क्या है, बट ठीक हम्म, है, ऑल दो सब कुछ ठीक था। हम्म, बट उसके बाद मैंने सोचा कि भाई प्रोफेशनल बनना है। और मार्केट में ना, जैसे इतने सारे कोचेस को मैं देखता था, जैसे हम्म, हम्म, आपकी मैंने बहुत बार केस स्टडीज देखी है, एफबी की, हम्म, हम्म, एफबीए के लोगों की केस स्टडीज देखी, हम्म, हम्म, तो मैंने कहा यार मुझे भी थोड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर मनी चल जाएगा कम, मुझे भी मार्केट हम्म, में स्टैंड आउट करना है और लोगों को पता हम्म, चले मेरे में पोटेंशियल है, मेरे में नॉलेज है, मैं हम्म, बहुत अच्छी सर्विस देता हूँ, मैं चाहता हूँ हम्म, लोग जाने, हम्म, जिसके लिए ब्रांड बिल्डिंग जरूरी है। और ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और ब्रांड बिल्डिंग से ही बिजनेस बिल्ड होता है, तो भाई वो मुझे हम्म, एफबीए ही हेल्प करेगा। हम्म, ये सबसे भाई सबसे बड़ा मेन यही डेफिनेटली. था कि यार ठीक है, अब हो गया फर्स्ट स्टेप, प्रोफेशनली करते हैं चीजें।
ठीक है भाई, तो एफबीए पे अपना फर्स्ट जंप आ गया था, आई थिंक फ्रॉम व्हाट नंबर्स आई हैव 30 to 50,000 के बीच में स्टार्टिंग में थे। यस भाई। विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स आई थिंक 1.6 लाख या 1.8 लाख 1.6 के था भाई। आसपास आ गए थे। 1.6 भाई। फिर उसके बाद आई थिंक दिस इज मई टू जुलाई अगस्टिश, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में वी हैड आवर फर्स्ट एफबीई इवेंट। यस एफबी भाई। में क्या, एफबी ज्वाइन करने से पहले क्या थॉट थी भाई? मुझे एक आपका उस टाइम का डायलॉग जरूर याद है दैट आपने जब ज्वाइन किया उसके बाद आपने कहा कि वाईवीएस ब्रो आपके नाम पे किया। एक्चुअली काफी एफबी मेंबर्स ने ज्वाइन किया था, आई थिंक 90% एफबी मेंबर्स ने किया था और सबने यही कहा था। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके, अगर इन्होंने दे जस्ट जॉइनिंग ऑन माय नेम, वी नीड टू मेक श्योर दे लेवल अप फर्दर। यस भाई। तो एक्चुअली भाई ये था कि आपने जैसे कि वो पोस्ट डाला हुआ था, राइट, एफवी की हाइब्रिड मॉडल है, तो वो पोस्ट मुझे दिखा ही नहीं था। जो वो चीजें होने वाला था उससे 3 दिन पहले मुझे एनी हाउ दिख गया। मैंने कहा चलो यार ये तो मुझे दिख गया, बहुत सही चीज है, वो भी अपने एफबीए वाली कम्युनिटी में दिख गया। वहां से फटाफट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। एंड भाई ज्वाइन करने के बाद आई टुक आपका जो फर्स्ट वो वाला हो रहा था, जिसमें आप और हिमांशु भाई दोनों आए थे, हाँ दोनों जी, बता रहे यस। थे। एंड उसमें मैं चीजें सुने जा रहा। मैंने बोला यार ये चीजें भी होती है, ये तो मैंने सुना भी नहीं था अभी तक। मैं सोच रहा था यही सब कुछ है कि यार आई एम द वन, मेरी केस स्टडी 1.6 लाख की एफबीए पे डल गई, मुझे 3-4 लोग जानते हैं, अब आई एम हैप्पी। तो फिर मैंने वहां से आपका देखा और वहां से मैंने सुना। तो ऐसे कर करके, और एक मतलब मेरे माइंड में ना 1 मिनट भी कोई थॉट नहीं आया, मतलब पैसों का थॉट तो 1 सेकंड भी नहीं आया। ऑल दो थे नहीं भाई, बट आया भी नहीं कि क्या है, कर लो। क्योंकि यार यस। जब मुझे वहां से एफबीए से इतनी वैल्यू मिली है, ठीक है, और अब तो मतलब ये कुछ समथिंग डिफरेंट है, और सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा, तो कर लेते हैं। तो फिर सीधा मैंने आपकी वो थी जो वर्कशॉप, वहां पे मैंने साइन अप किया। मैंने ठीक है यार इतना कर लेते हैं। फिर आपने बोला कि ठीक है यार, अब आपको पर्सनल इवेंट पे आना है, जहाँ पे हम 2 दिन आपको बताएंगे कि बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, फिटनेस एफबीई है क्या, एफबीएस था आपने, फिटनेस बिजनेस समिट। और यस। हाँ, यस। तो होना क्या वाला है उसमें भाई, देन टू बी ऑनेस्ट भाई, उस टाइम पे मेरे अकाउंट में बस मुश्किल से 8,000 रुपए थे, ठीक है। एंड मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, मैंने सोचा यार जिस इंसान ने मुझे 1.6 कर दिया, उस टाइम पे जो आपका क्लेम था फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज, मैंने कि वो तो छोड़ो भाई, 1.6 से मैं 2 आ जाऊं, ढाई आ जाऊं, आई एम वेरी हैप्पी, या इसी नंबर पे सस्टेन करूं। तो आई हैड भाई ओनली 8,000 रुपीज इन माई अकाउंट। मैंने फटाफट वो सीट बुक करी, क्योंकि वो मुझे पता है यार, आप वहां जाओगे खाना मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी, बैठने के लिए उनको भी पे करना पड़ता है, ये मुझे अच्छी चीज पता थी। फिर भाई इवेंट में आया, इवेंट में देन इवेंट स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट डे ऑफ इवेंट तो भाई मुझे नींद नहीं आई थी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं पास में, सिस्टर मेरी गुड़गांव में रहती है, मैं वहीं पे रुका हुआ था। मुझे नींद नहीं आई, मेरे सर में दर्द हो रहा, मैंने ये करोड़ों रुपए की बात है, क्या क्यों, मतलब हो क्यों रही है ये बातें हमारे सामने, ये था, टू बी ऑनेस्ट। तो और ये मेरे साथ नहीं था भाई, हम वहां पे खाना भी खा रहे ना, तो 10 कोचेज मिलके, मैं किसी को नहीं जानता था, पर यही बात कर रहे थे ये होगा कैसे। क्योंकि आपने आपने आप थोड़ा चीजों को रियलिस्टिक लेके चलते हो। फिर हिमांशु भाई आते हैं तो वो अपने हिसाब से बताते हैं कि यार बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। यस। तो हमारा पूरा यस। सर दर्द, फर्स्ट डे सर दर्द, एक से एक को तो मैंने, उस टाइम भाई नवरात्रि भी चल रहे थे, मैंने एक के मुंह से ये भी सुना कि भाई आज तो नवरात्र, बट कोई बात नहीं, आज मैं दारू पीऊंगा उस बंदे का नॉस्टैल्जिया ब्रो, लिटरली दिस इज 1 year बैक। मुझे याद है दैट लास्ट ईयर सितंबर हिमांशु और मैं यहाँ ही साथ बैठे हैं, वी आर टेकिंग दी यस वर्कशॉप। एग्जैक्टली। अक्टूबर में आई थिंक अराउंड दीस डेट्स ओनली वी हैड आवर फर्स्ट इवेंट, एंड ब्रो इट्स गुड, एंड नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स अगेन कि भाई 1 साल हो गया उस बात को, एंड दैट इज ग्रेट। क्या भाई अब वहां थोड़ी सी पे ग्रोथ। हाँ जी भाई, प्लीज प्लीज। वहां पे भी फिर मतलब आपने समझाया चीजें कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ऑफर क्लियर किया। एंड उस टाइम पे भाई मेरे पे पैसे नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने जो पिछले 6-7 महीने जर्नी से जो पैसे थोड़े जमा किए थे, ठीक है। ऑल दो भाई देखो, जिनके पास पैसे है और वो ये चीज नहीं कर रहे, तो मैं तुमको कहूंगा कि यार वो उनके लिए बहुत ड्रॉबैक है, वो आगे जाके वो चीजें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगी। मेरे पे तो ये था कि यार मेरे पे अपॉर्चुनिटीज मैं खुद बना रहा था, मेरे पे थी नहीं। तो मैंने एक भाई गोल्ड चेन खरीदी थी, ठीक है, 80,000 रुपीज की, पिछले 1 साल में जैसे तैसे करके। एंड मैंने सोचा चलो यार रिस्क ले लेते हैं, आपने जैसे मुझे स्ट्रक्चर दिया था फॉर एग्जांपल ईएमआई का, कि रिस्क ले लेते हैं। मैंने आगे का नहीं सोचा, मैंने कि यार इसमें मुझे कुछ तो वैल्यू मिलेगी, नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, बोल दूंगा भाई मेरे पे कुछ भी नहीं है, बाद में मिलेंगे कभी मेरे पे कुछ हुआ तो मैंने वो सोने की चेन भाई फटाफट बेची, मैंने आपको देन वो करा। एंड विद इन 2 मंथ उसके बाद तो मतलब बिजनेस हर महीने स्केल ही हुआ, रुका नहीं।
जैसे कि यस दिसंबर अब यस 1.2 था भाई, जनवरी 1.8। एक तो सेकंड मतलब पॉज एक सेकंड पॉज एक सेकंड पॉज सो बेसिकली भाई अब आई एम श्योर एवरीवन इज एक्साइटेड इन नोइंग कि भाई मंथ बाय मंथ कैसे चला है। थोड़ा सा मैं लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मई टू जुलाई वी वर्क टुगेदर, देन अक्टूबर में इवेंट हुआ बट वी स्टार्टेड ऑन 4th ऑफ दिसंबर। थर्ड ऑफ एक्चुअल में जब दिसंबर, मैंने फर्स्ट थर्ड फोर्थ, वो यस लिया, यस। फर्स्ट लेक्चर लिया, फर्स्ट फनल की बात करी, तो उधर से बताओ भाई। अब मेरे को जैन टू अक्टूबर, दिसंबर टू अक्टूबर बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। भाई इसके पीछे की भी आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे बताओ कि भाई। अ, आपने वो दिया था, हिमांशु भाई का कोर्स भी था उसमें, आईसेक्स। आप हम्म बिलीव नहीं करोगे, आईसेक्स मतलब मैं क्या करता था, मैं इतना एक्साइटेड था चीजों को लेके। मैं हम्म रात को 9 बजे टेबल पे बैठता था, इसी हम्म टेबल पे सेम। हम्म और हम्म मैं सुबह भाई 5 बजे उठता था। मैं हम्म, सुनता था यार 30 लॉज ऑफ मिलीनियर, एंड भाई स्टिल यू कैन सी मेरे वो अभी भी लगे हुए 30 वाह लॉज ऑफ वाह, मिलीनियर। तो मतलब मुझे दैट जो इज चीज ग्रेट ब्रो। बोली गई मैंने कभी चेंज नहीं करा। हम्म तो वहां से हम्म चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। देन भाई जब ज्वाइन किया था तो मैं 1.6 से वापस ड्रैग नीचे आ गया था, हम्म 160,000 पे आ गया था, फिफ्टी हम्म थाउजेंड पे। देन भाई फर्स्ट मंथ दिसंबर गया क्रेजी। उस टाइम तो ये भी नहीं पता था मंथ जाते कैसे। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इसमें। आई थिंक यू टोल्ड मी कि आपका तो जुलाई तक आपने बिजनेस ऊपर गया, देन आई थिंक आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आ गया था। प्लीज वो भी बताओ कि वो हाँ, नीचे कैसे आया था तो नंबर एंड एक्चुअली फ्रॉम फिर देयर। एक्चुअली भाई उस टाइम मैं सीरियस नहीं था चीज़ों को लेके, ना ही मेरे पे हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ना ही कुछ था। तो हम्म मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड कहीं से घूम के आया था, उसके चक्कर में मैं उसमें बिजी रहा और मैंने अपने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। हम्म तो दिसंबर भाई हमारा फर्स्ट टाइम हमने 1.2 किया था, ठीक है। हम्म उस टाइम कोई कोई टीममेट नहीं था। हम्म एंड 1.2 के बाद भाई जनवरी 1.8 गया था, हम्म ठीक है। एंड उसके बाद भाई 2 गया, 2 के बाद हम्म 2.8 गया, 3, 3.8, 4, 4.5, 5, 5, 5, 6 के बाद सीधा भाई हमने फिर अभी अगस्त था तो 11 किया ना। सितंबर था, 11 था, फिर लास्ट में 7 फिगर था। मुझे याद है बिकॉज क्योंकि 6 वाली जब स्ट्रेटेजाइजेशन थी ना, मैंने कहा भाई आई वांट इट मेंटेन्ड। आई थिंक 2 या 3 महीने आपने मेंटेन किया, यस बट भाई। फोर्थ मंथ माय गोल विद यू वाज कि इसको 6 को मैंने 6-7 रेंज में रखना है। बट आपका सीधा मैसेज आता है कि ब्रो 6 मैंने हिट करा, आई थिंक 15-20 डेज में। आप बताओ क्या नंबर हिट होगा, समथिंग लाइक वो दैट। मेरी तो आदत है भाई आज भी, हम्म कि मैं आपको हम्म 6-7 तारीख को मैसेज करता हूँ, भाई आप बताओ नेक्स्ट अब इस मंथ में क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे हम्म लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है, बट आप मुझे एक बार वो चीज़ एक्नॉलेज कर देते हो हम्म तो मैं सोचता नहीं। जैसे आपने मुझे लास्ट इवेंट में 3 चीजें क्लियरली बोली, भाई हम्म मुझे रिन्यूअल चाहिए, मुझे सर्विस चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए। टू बी हम्म ऑनेस्ट वो चीज़ मेरे दिमाग में इतनी घुस गई, और मैं उस दिन से लेकर आज तक मैंने बहुत चीज़ें इंप्रूव कर ली। मतलब ऑलमोस्ट आज जैसे 12 तारीख है भाई, ठीक हम्म है। तो हमने मतलब 12-15 दिन में बहुत चीज़ें इंप्रूव कर ली, इवेंट जब हमारा एंड हुआ था। हम्म वो चीज़ है। दैट इज ग्रेट ब्रो। थोड़ा मेरी टीम का भी बताओ भाई। रेवेन्यू आपने बता दिया, टीम का बताओ थोड़ा कि अब टीम स्ट्रक्चर क्या है। बिकॉज यू नो टीम बिल्डिंग is one thing which you have done in a great manner, I would say, and at a quick pace. जनरली क्या होता है कि आप एक टीम मेंबर आया, तब थोड़ा टाइम, ह्यूमन नेचर समझने में इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बट इन योर केस व्हाट आई सीन इज यू हैव डन दैट ब्यूटीफुली भाई। वो बताओ मुझे थोड़ा। टीम मेंबर भाई एक्चुअली सबसे पहले जब हमारा इवेंट हुआ था तो आपने उसमें बोला कि यार लेट्स हायर अ वीए, वर्चुअल हम्म असिस्टेंट। तो हम्म मैंने ऐसी स्टोरी डाली तो किसी ने वहां पे अपना सीवी भेजा, ठीक है। हम्म देन हम्म मैंने उनको समझाया कि यार ऐसे ऐसे काम है, ये काम अभी मैं सब कर रहा हूँ, आपको ये काम करना है थोड़ा बहुत, आपको इंस्टाग्राम पे समझाना है और चैट करनी है क्लाइंट से, सिंपल ऐसे ऐसे हम्म करके। हम्म उनका मैंने बेसिक भाई एक 8,000 का पेमेंट स्ट्रक्चर सेट कर दिया, हम्म ठीक है। एंड भाई अब वो मेरी टीम में भाई हेड को मतलब कम्युनिकेशन हेड है। नाउ शी इज मेकिंग अराउंड, अगर मैं बताऊं तो भाई मोर देन 50,000 एवरी मंथ, वेरी ठीक है। गुड। देन भाई सेकंड मैंने जो हायर किया, अपना दोस्त ही हायर किया। जहाँ मैं फर्स्ट, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे भाई वो हाउसकीपिंग में काम करता था। तो मैंने सोचा यार इसी को करते हैं, इसको नॉलेज भी है, इसने इसको मैंने अपनी बुक्स दी पढ़ने के लिए। उसको वहां से भाई मैंने अपनी टीम का पहला कोच बनाया कि भाई ठीक है तू बन, तू कर। तो पहला कोच बनाने के बाद वहां से भाई फिर थर्ड पर्सन मैंने, जब मेरा 3.5 या 4 लाख हिट हुआ, ऑल्दो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला टीम बिल्ड करो, मैंने खुद ही करते ही चले ब्रो गया। फर्स्ट मेंबर हमने कौन से आफ्टर फेब किया था, बिफोर फेब किया था, मतलब कितने मंथ्स बाद किया है? भाई हमने किया था अराउंड 1st ऑफ फेब, क्योंकि मुझे अभी तक याद है 14th ऑफ जनवरी, नहीं 7th ऑफ जनवरी को हमारा भाई फर्स्ट इवेंट था इंदौर में हाँ यस। ऑफिशियली। तो उसके हम्म बाद हमने किया। देन भाई मैंने सेकंड करा फेब एंड में। देन भाई हम्म मैंने मई में अपना, मतलब मुझे पता भी नहीं था क्लोजर क्या होता हम्म है, वो आपने बताया था हम्म सारी चीजें। हम्म उसको मैंने हायर किया, वो एज अ कोच भी था। हम्म देन भाई धीरे धीरे टीम बिल्ड होती गई, बिल्ड होती गई।
तो अभी मैंने हायरिंग लास्ट मंथ ही बंद करी थी कि चलो ठीक है, अक्टूबर नवंबर सर्विस पे काम करना है, दिसंबर में देखते हैं। तो अभी भाई मेरे पास मतलब टोटल 6-7 लोग हैं, मतलब That छह is सात लोग। great. And by good part is you are also helping them grow. इसके लिए मैंने एक पॉइंटर अपने नोट्स में एक लिख रखा है, मैं बाद में करूंगा आपकी बढ़ाई. अभी I just want to know more. तो भाई नहीं अब भाई, ग्रोथ आई मेड समझ. अ मिस्टेक हाँ एज जी. वेल, आई मेड अ Yes, please मिस्टेक। start, please बताओ. मुझे लगा कि यार जब मैंने 5 लाख कमाया, मेरे पे टीम मेंबर हो गए, तो क्लाइंट ना मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैसेज भी करता था, तो हम्म. मैं देखता था यार मेरा काम नहीं है, कोच का काम है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती मिस्टेक करी कि मैंने पर्सनली मैंने ये सोचा कि यार इनको मैं पे कर रहा हूँ, बट देन यू आपने मुझे रियलाइज कराया, ऑल तो भाई ब्रांड तो तेरा है ना, तेरे नाम से तो वहां से पैसे आ रहे हैं और क्लाइंट आ रहा है। तो फिर मैंने ये गलती करी कि मैं उनको इग्नोर कर रहा था, जिसकी सर्विस भी बहुत डाउन गई। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अगर मैं नए क्लाइंट्स पे फोकस करता रहूंगा तो मैं बड़ा ब्रांड नहीं बन पाऊंगा, मैं बहुत जल्दी पीछे गिरने वाला हूँ, मैं 5 लाख पे रह जाऊंगा हमेशा। तो फिर वहां से मैंने रियलाइज, और भाई मैं पर्सनली उस चीज में काफी इन्वॉल्व हुआ। एंड अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी टीम मेंबर्स भी खुश है, क्योंकि मैं ही वो स्टेप नहीं ले रहा था, उनको पता है यार हेमंत पीछे भाग रहा है, तो मतलब हम कैसे आगे आए। तो Definitely. वो चीज भाई आई लर्न वेरी वेल। And bro, it takes a lot of guts to, accept this thing. And that's one mistake which I also made temporarily in between कि यार कि यार अब coaches का काम है, but the thing is कि this is the last in my career में बोलूँ तो obviously first 3-4 years मैं बहुत actively coach कर रहा था. 2021 onwards इतना नहीं करता था. I just used to train my team. This year I spent the maximum time coaching, coaching people, that is, the whole FB gang and Team YBS gang and even FBA gang also, because I realized that in the end, the biggest lesson for my career has been service over everything else. And by good True that भाई। you're learning this at such a young age. Next question है कि भाई interesting question है. You are what, 25 right now? यस भाई, लास्ट मंथ। 25, 24 चलो, 24 just 25. How do you feel to be here by at such a young age? Because by this is 11 lakhs is not a small number, bro. I think Ankur Wariku's video I watched, that if you want to be top 1%, you need to be making somewhere around 3.7 lakh rupees a month. So at this age, how does it feel like? ब्रो इससे पहले मुझे स्टिल रिमेम्बर, ये 1% वाला भी मुझे आपने बताया था Hmm. कि मतलब मैं देखो गाइस, आप सब देख रहे हो, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं वाईवीएस को बहुत परेशान करता था कि भाई 2.5 हो गया, 2.8 हो गया, 3 हो गया, ऐसे Hmm. करके मैं बहुत ज्यादा नंबर्स को लेके ना भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था। Hmm. देन आप मुझे जो चीजें बोलते थे ना, मुझे बाद में रियलाइज होती थी कि यार ये सारी चीजें ट्रू है, कि Hmm. आपने मुझे मोटिवेट करा। मुझे स्टिल याद है वो 2.5 मिनट का वॉइस नोट भाई मैं आज भी सुनता हूँ Hmm. कि ब्रो यू आर एट अराउंड 2.8 लाख, आप ऑलरेडी मतलब इतने पे आ गए हो, इतना चाहिए 1.1% आने में, कि यू आर डूइंग ग्रेट। क्योंकि कई Hmm. बार हमको ना, कई बार भाई हम ना कम्युनिटी को देख के ना नंबर्स के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, विच Hmm. इज वेरी रॉन्ग। Hmm. अपनी जर्नी Hmm. को कंपेयर करना, फॉर Hmm. एग्जाम्पल Hmm. दिस पर्सन इज डूइंग एक्स अमाउंट एंड आई एम डूइंग वाई अमाउंट, भाई मैं इतना क्यों नहीं कर रहा, विच इज Hmm. वेरी रॉन्ग भाई। Hmm. Hmm. मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। और Hmm. भाई अब जैसे कि जो चीजें चल रही है, अब तो मुझे खुद से रियलाइज नहीं होता कभी कभी कि भाई ये मैं ही हूँ, चीजें हो रही है इतनी इजीली, मतलब इतनी इजीली चीजें हो कैसे रही है। Hmm. तो गाड़ी लेना हो गया हो भाई, जैसे कि एंड मैंने किसी को नहीं बताया कि लास्ट मंथ आई बॉट अ राडो वॉच एज वेल भाई। Hmm. ठीक है, Wow, congratulations, भाई. थैंक यू भाई। एंड That's good. वहां से वो करना, अपने लिए गाड़ी लेना, Hmm. बिजनेस में इन्वेस्ट करना, कुछ भी चीजें करना, Hmm. मतलब उससे लगता है कि यार बहुत चीजें ना बिलीव नहीं होता अभी भी कि भाई मैं कुछ कर Hmm. रहा हूँ। और मतलब लोग मुझे, इतने लोग Hmm. कहते हैं, जैसे आपने मेरी केस स्टडी डाली है 6.5 लाख Hmm. वाली, राइट, Hmm. उसके Hmm. बाद फिर बड़ा नंबर हिट हुआ, तो वहां से भी Hmm. मुझे बहुत नंबर लोग मैसेज करते हैं भाई यू आर इंस्पिरेशन, ये वो, तो मुझे बिलीव नहीं होता कि सही में भाई मतलब कुछ है हम। Bro, you are, from my own words, and after listening to this story, I'm like, bhai, killed it, bro. And again, this is just the beginning. Next question is, चलो भाई, believe नहीं हो रहा. Next goal ऐसा कौन सा जो, what is your next goal? अब genuine बताना मेरे को, because I think ये हमने discuss नहीं किया. Uh, यस भाई। yes, भाई what is the जेन्युइनली next goal? मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज ही अपने नेक्स्ट गोल लिखा था। ठीक है, Hmm. मैंने आपसे सीखा है, आपने एक बार वीडियो में अपने नोट्स शेयर करे थे, तो Hmm. मैंने देखा यार Hmm. वाईवीएस भाई इतने नोट्स बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं Hmm. आपसे Hmm. बहुत इंस्पायर Hmm. होता हूँ। Hmm. ठीक है, क्योंकि अब अगर किसी से कुछ सीख के आगे ही बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत Hmm. चीजें नहीं है। ठीक है, Definitely 100% भाई. तो ब्रो आज ही मैंने अपनी टीम के साथ ऐसी विजन शेयर करा कि मेरा नेक्स्ट Hmm. विजन जो 2025 का है, मतलब Hmm. अनरियलिस्टिक नहीं होगा, Hmm. हमारा Hmm. गोल रहेगा कि हम 2 CR एनुअली पे सस्टेन करें। Hmm. ठीक है, विच इज अराउंड भाई Hmm. 15-16। हाँ. एंड 2026 के एंड तक कि हम 5 CR तक जाए, कि Hmm. ठीक है सस्टेनेबल नंबर है, स्टेबल नंबर, आराम आराम से जा रहे हैं। तो ये हाँ. मेरा नेक्स्ट गोल है भाई, और मेरे हिसाब से इस टीम के साथ मैं कर सकता हूँ आराम से।
बहुत मैंने अच्छे से सिखा दिया इनको सर्विस की, भाई सर्विस, कम्युनिकेशन, सारी चीजें ऑन पॉइंट रहनी चाहिए, कुछ चीजें डाउन नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखो, क्योंकि आपसे मैंने सीखा है कि भाई आपके इतने बड़े बिजनेस में से जो सबसे बड़ा नंबर जाता है वो भाई टीम को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी आपने भी बोला था कि भाई तू बहुत पैसे दे रहा है टीम को, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दे रहा हूँ, बट ठीक है मैं इनको लॉन्ग टर्म में ज्यादा काम कराऊंगा इन टर्म्स दैट की इज यार। ग्रेट। एक काइंड ऑफ एम्पथी होती है ना, मैं उनकी शूज में वॉक इन करके देख रहा हूँ कि यार उनकी, भाई अब मेरी टीम में एक एक है, ही इज 38 year old। अब सोचो उसकी फैमिली में अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। टचवुड मेरी लाइफ में कोई फाइनेंशियल एक भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं फैमिली इज गुड, मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के ना भाई सब लोग खुश हैं। माई सिस्टर इज गुड, ठीक है, माई ब्रदर इज हैप्पी, मेरे फादर बहुत हैप्पी है, फैमिली इज हैप्पी, सब प्राउड करते हैं कि यार ठीक है। मतलब मेरी मॉम मुझे कह भी रही थी अभी एक हफ्ते पहले कि हम तो तुझे नालायक समझते थे और तूने तो मतलब सबसे आगे निकला। तो मैं ये कि यार मतलब अगर आप किसी चीज को सही से दिल से करोगे एंड ग्रो करने की कोशिश करोगे, इफ यू हैव अ राइट मेंटर, एज राइट मेंटर है तुम्हारे पास, राइट मेंटर है, तो भाई लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। बट अब मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि यार एक मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने भाई ऐसे सर्वे किया कि यार लास्ट ईयर मार्केट साइज था, फॉर एग्जाम्पल मार्केट साइज था 3000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल, नंबर तो 2.3 लाख करोड़ निकला था टोटल वेट लॉस मार्केट साइज का। मैंने सर्च ठीक करा, है। हिमांशु भाई ने सर्च करवाया था। तो मैंने हाँ। सर्च करा ऐसे एंड मैंने सोचा यार ये करने के बाद मेरे हाथ में 5 लाख क्यों आ रहा है। अब पैसों के लिए नहीं, अब कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी को बिल्ड करते हैं एंड अब कंपनी को धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जब एक एक्स कंपनी इतना कर सकती है, ठीक है, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इंसान है। हम डेफिनेटली। पे तो थोड़ी, बस हमको ज्यादा मेहनत, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और टीम वर्क ज्यादा लगेगा, करते हैं कोई बात नहीं। अब तो ये कि चलो ठीक है, अब भाई मैंने नोटिस कर लिया मैं जितना मर्जी कमाऊं, मेरी नीड्स 1 लाख रुपीज में भी पूरी हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। यस। अब यस। जो पैसे हैं, अब जो चीजें हैं वो बिजनेस के लिए है, वो बिजनेस अपना भाई, वो एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए है कि यार एक कंपनी बनानी है, कोच्ड बाय हिम एक अच्छी चीज है एंड इसको चलने देना है, चलने देना, चलने देना है। एंड आपने कुछ और भी मुझे सजेस्ट किया अभी करने के लिए जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर हाँ रहे हैं हाँ, वो वी विल शेयर आफ्टर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बिकॉज नेक्स्ट मुझे पता है पॉडकास्ट कि में यार। वी वुड हैव लॉट मोर स्टोरीज इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब शेयर यस करेंगे। यस। तो ये चीज था भाई, ये चीज। ग्रेट गोल्स भाई। दूसरा, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई कि यार अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली यस भाई। खुद आपने इतने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, बट थोड़े टाइम से हेल्थ को हमने थोड़ा सा बैक सीट पे ला दिया है। तो व्हाट इज द प्लान फॉर दैट? भाई एक्चुअली उस टाइम पे जब मतलब कुछ भी नहीं था, बिजनेस भी जीरो, सब कुछ जीरो, तो मैं हेल्थ पे मतलब बहुत ज्यादा चीजें ध्यान दे रहा था। अब एक्चुअल में क्या हुआ भाई, पिछले 6-7 महीने से मैंने बिजनेस को लेकर इतना सीरियस हुआ और थोड़ा ट्रैवल भी इधर उधर ज्यादा होने लग गया, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ, टीम को देख रहा हूँ, तो काफी बिजी हो गया था भाई, जिसकी वजह से ना मुझे ईएनटी का प्रॉब्लम हो गया था भाई। जिसमें क्या हो गया था, मेरा ना एसिडिक एसिडिक रेफ्लेक्स बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से। और भाई आई यूज टू डू बॉडी बिल्डिंग, तो भाई उसमें हमने पैड्स भी लिए, सारी चीजें लिए। तो जब मैंने एकदम से वर्कआउट 1 महीने के लिए भी छोड़ा ना, तो भाई वो सडनली ना, एक तो स्ट्रेस हो गया ईएनटी वाला, बिजनेस वाला लेके, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा सोचता था, दूसरा भाई वो पैड्स वाला। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ना भाई सडन बॉडी ने 15 से 20 kg वेट गेन कर लिया। वो चीज है, बट नाउ इस चीज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि धीरे धीरे धीरे, अभी मेरी आपसे बात भी हुई थी, आपने हाँ। बताया ठीक है हिम्मत है, क्योंकि मैं खुद कोच हूँ, मुझे पता है मुझे नेक्स्ट लेवल कोच है, बट ठीक है यार, मुझे एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है अपने कोच की। आपने बोला ऐसे करा, 3 दिन से मैंने करा, तो 3 दिन से आई कैन सी अ फ्लक्चुएशन ऑफ 1 kg एज वेल। और अब दैट्स नेक्स्ट 3 मंथ्स का ये है कि जो प्लान्स है उस चीज में, ठीक है कि मैं अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा, 6 पैक नहीं बनाऊंगा पहले की तरह। दूसरी चीज भाई, मैं पेट्स बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, ना मैं कभी रिकमेंड करूंगा क्लाइंटों को भी, मैं विदाउट सप्लीमेंट चीजें सॉर्ट करता हूँ। मैं जो करूंगा, मैं फिट दिख रहा हूँ, फिट भी नहीं, मैं पतला दिख रहा हूँ, आई एम हैप्पी। मुझे मसल नहीं बनाने, मुझे बस अपने आप को फिट रखना है। डेफिनेटली। एंड आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू इयर्स इन द इंडस्ट्री ना, एक ये गोल आया था कि यार मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए करें, फीलिंग गुड इन आवर ओन स्किन, बाकी चीजें बिकम सेकेंडरी। डेफिनेटली। ठीक है भाई। अब अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई आपके लिए। अब मुझे पता है कि यार थाउजेंड्स ऑफ कोचेस विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस। तो अपने व्हाट आर योर 3 biggest टिप्स which you would like to do, give to coaches who are like old Hemant or maybe Hemant 3 months back or 6 months back? What are the 3 biggest things you would want to tell them, bro? ब्रो फर्स्ट थिंग, अगर इफ यू हैव आपको लगता है कि यार आपका माइंड सेट है बिजनेस करने का, Hmm. फिटनेस बिजनेस एक्चुअल में जो वर्ड है फिटनेस बिजनेस Hmm. करने का, Hmm. चाहे वो भाई फिटनेस बिजनेस आपका एम्पायर हो एफबी, या वो Hmm. फिटनेस बिजनेस एक्सकेलेटर हो, Hmm. अगर आपको जेन्युइनली ये चीज
फिटनेस में पैशनेट हो, जब भी ये चीज करो। अगर आप पैसों के लिए करोगे तो थोड़े टाइम बाद आप बोर होकर ये चीज छोड़ दोगे, विच इज वेरी रॉन्ग। दूसरी चीज भाई, अगर आपको लग रहा है मेरे पेरेंट्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मुझे ये चीज करा सकते हैं, तो वेट मत करो स्टोरीज एड्स वगैरह देख के। लेट्स लीट्स एक स्टेप लेके कंसल्टेशन कॉल तो ले सकते हैं भाई। मेरा भी यही सेम था कि कंसल्टेशन कॉल इज फ्री, और देख तो लेते एक्चुअली में हो क्या रहा है अंदर, क्या पता मुझे और ज्यादा वैल्यू मिले। ये चीज थी भाई। तीसरी चीज भाई, बंदे ना बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहीं से कोच कोच ले लिया, तो भाई 1 महीने पे कुछ नहीं हुआ ना, तो उनका ट्रस्टिंग प्रोसेस जीरो है। तो ट्रस्टिंग प्रोसेस भाई पूरा होना चाहिए। और फिर क्या होता है भाई, पास में आपको पता है केस भी होता, बंदे यहाँ भी भाग रहे हैं, वहां भी भाग रहे हैं, यहाँ भी भाग रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आपकी जो प्रॉब्लम है आप अपने कोच से शेयर करो, आपका कोच ही आपको सोल्यूशन देगा। अगर आपका वो सोल्यूशन नहीं दे रहा बंदा, देन आपको लग रहा है ना कि यार, वो कहते हैं ना भाई, ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंड बट मेक श्योर योर कोच इज नॉट ब्लाइंड। तो वो चीज होनी चाहिए। और आप 2-3 बोट में पैर मत रखो। 3 महीने 6 महीने कितना भी टाइम लगे, आपको पता है अंदर से आप कर सकते हो, करो। कोच पे ट्रस्ट रखो, सारी चीजें इजिली हो जाएगी। एंड जैसे कि भाई मैंने आपकी पोस्ट पे एक चीज देखी है, देयर इज अ वन पर्सन, आपकी वो हर पोस्ट पे कमेंट करता है कि ब्रो दिस इज रियलिस्टिक, और मैं हर बार कमेंट करके सीन करके छोड़ देता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार, अगर आपको लगता है कि आप थिंकर हो, तो भाई एक्शन ले लो, वरना बहुत लेट हो जाएगी। मार्केट आपको लगेगा कि यार, आपको ना धीरे धीरे सारी चीजें अनरियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे हम रॉक करेंगे भी रॉक करेंगे भी रॉक करेगा। डेफिनेटली भाई, ग्रेट टिप्स। अब मेरी बारी आगे बढ़ाई करने की। अब आप आराम से बैठो, आपकी बढ़ाई करते हैं। कल एक्चुअली कल कल भी क्या, जब भी हमने पॉडकास्ट प्लान किया ना, तब वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स इज थिंकिंग अबाउट योर जर्नी एज योर मेंटोर, एंड थिंकिंग कि यार कौन सी चीजें ये हर कोच में आ जाए तो दे विल सक्सीड लाइक क्रेजी। एंड मैं बताता हूँ भाई, पहली चीज मेरी लिस्ट में केयर फॉर पीपल। And this is not just about care for your clients or yourself, your family. Yes, भाई। मुझे अभी भी याद है भाई, हमारा एक दिल्ली में इवेंट था, एफबी का इवेंट था। उधर हेमंत स्पेशली आके पूरा दिन स्पेंड किया उसने। ही इज लाइक टॉकिंग टू एवरीवन, पिचिंग आवर सर्विस, एंड 2 days में ही वाज लाइक टोटली देयर, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन अदर्स आल्सो सी अ रियल पर्सन हु हैज गॉटन रिजल्ट्स विद देम एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस, उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है। एंड एंड में हेमंत ने 2 days हो गए, तो आई थिंक मैंने मैसेज किया या आपका मैसेज आया कि यार आई वाज लाइक ब्रो थैंक यू, एंड आपका रिप्लाई ये आया कि भाई मेरे को बदले में एक चीज चाहिए। तो आई वाज लाइक व्हाट, एंड योर रिप्लाई वाज कि भाई मेरे को जैसे आप अभी देख ध्यान रख रहे हो ना, आपने ध्यान रखना है। एंड आई वाज लाइक यार, ये ये डीप इनसाइड आपको चीजें पता है कि आई ऑलरेडी वुड हैव डन दैट भाई। बट दैट डे आई रियलाइज दैट हाउ मच केयर यू हैव, नॉट जस्ट फॉर योर क्लाइंट्स, एंड ऑल्सो अनदर थिंग व्हिच आई लर्न टू वाज कि भाई आप अपनी टीम के लिए केयर करते हो भाई। क्योंकि आई एम दैट पर्सन जो अभी भी मैं बड़ी ओपनली कहता हूँ दैट माय कोचेस गेट पेड द मोस्ट। अगर जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी अगर कहीं किसी नंबर से कम हो रही है, 90% से या 80% से कम जा रही है, दैट्स बिकॉज आई एम पेइंग माय कोचेस अ लॉट। एंड बीच में एक दिन आया था, मैंने कहा कि एंड आई हैव दैट माइंडसेट दैट इफ माय टीम इज ग्रोइंग आई वुड आल्सो ग्रो। बट एक दिन ऐसा दिन भी आया जिस दिन मैंने, सो दैट वे आई एम वेरी फ्री माइंडेड, बट मैंने एक दिन ऐसे हिम्मत को तक बोला कि भाई आप बहुत, यू आर पेइंग टू मच, डोंट डू दैट राइट नाउ, राइट। वो मेरे को रियलाइज हुआ, बट देन हिम्मत रिप्लाई वाज कि यार आई, वो एज वाली बात हुई थी, एंड यू वर लाइक यू मेड मी टॉक टू वन ऑफ योर टीममेट्स आल्सो, एंड आई वाज Yes, लाइक यार हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड हेमंत साइड, एंड दैट्स नेक्स्ट पॉइंटर है कि यार हेमंत डज नॉट यूज हिज एक्स्ट्रा ब्रेन बट स्टिल यूजेस हिज ब्रेन। मतलब जो भी मैं चीज कहता हूँ ना, फर्स्ट थिंग हेमंत डजंट थिंक होगा या नहीं होगा, ही अप्लाइज इट फर्स्ट। पहले वो अप्लाई करता है, फिर वो उसके बाद मेरे से पूछता है क्वेश्चन। वरना बहुत बार क्या होता है, इवन आई ऑल्सो हैव दैट प्रॉब्लम कि मुझे कोई चीज बोलता है, पहले मैं 10 बार सोचता हूँ कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी। इन हेमंत केस वन थिंग व्हिच आई हैव सीन इज दैट व्हाई इज ही विनिंग सो बिग राइट नाउ, दैट ही अप्लाइज फर्स्ट, थिंक सेकंड। बट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो दिमाग बिल्कुल ही नहीं यूज किया, देन ही यूजेस हिज ओन ब्रेन आल्सो, एंड आफ्टर दैट ही मैसेजेस में कि यार अब मैं ये सोच रहा हूँ। एंड लॉट ऑफ टाइम्स माय रिप्लाई टू हिम इज भाई ग्रेट आइडिया, मजा आ गया, मुझे खुद को सुन के मजा आ गया। लिटरली 2-3 दिन पहले ही कुछ ऐसी बात हो रही थी, आई वाज लाइक भाई सुन के मजा आ गया, कुछ यूजर नेम की बात हो रही थी, आई थिंक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड नेक्स्ट इज भाई नंबर वन, ट्रस्ट इन कोचिंग। बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे अब नाउ आफ्टर हैविंग दिस 2 hour डिस्कशन ना भाई, आई अंडरस्टैंड कि यार कितना ट्रस्ट इन प्रोसेस आप कह रहे हो, पुराने वॉइस नोट सुन रहे हो, यूट्यूब आप सब कुछ, यू वॉच लिटरली एवरीथिंग। तो दैट वे
यू आर सो नर्चर्ड, बट आप कोचिंग लेने के बाद, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोचिंग भी लेने के बाद, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर नर्चर्ड, अगर हम फिटनेस बिजनेस की तरफ से बोले तो। सेकंड इज भाई, अब एक पॉइंटर मैंने 3-4 पॉइंटर डाल दी। नेक्स्ट इज एक्शन टेकिंग। अगेन एक्शन फर्स्ट, जैसे लास्ट स्ट्रेटेजाइजेशन हुई। आप ऑलरेडी अभी मेरे को यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने अपडेट दे दिया कि भाई मैंने 15 दिन में काम खींच रखा है। दैट इज एक्सेप्शनल एंड दैट मेक्स कोचिंग फॉर मी वेरी इजी, बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन सेल्फ ग्रो। मुझे भाई ये याद है, स्टार्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा पता था, आज मुझे फुल क्लैरिटी लगी। बट इवन फॉर दैट इवेंट, एफबी वाला इवेंट ऑल्सो, यू डिड नॉट हैव द मनी। मेरे को यही याद था कि यार स्टिल इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, एंड नॉट जस्ट बाय पेइंग अस, अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। आई एम सीइंग दैट, भाई राडो भी खरीद रहे हो क्या, you are investing in yourself because you deserve it. Because bhai, if you are doing so great at such a young age, and others are looking at you and they want to be like, okay यार मेरे को हिम्मत जैसा business build करना है, I want to build a life like this. If you don't enjoy, then what is the sense, right? And your Rado would be a reminder. Although अब मुझे बुरा लग रहा है, मेरी फर्स्ट घड़ी नहीं आई, आपकी आ गई है, मैं अपनी भी जल्दी बताऊंगा। And you care about people. मैंने छोटी छोटी चीजों में देखा है that caring about, we have been able to, we are lucky to create a culture where everyone is helping each other and it's not just about others. मैंने देखा भाई कम्युनिटी में you are helping everybody, right? सबसे पहले मतलब किसी को वी चाहिए, कुछ चाहिए, सबसे पहले आपका रिप्लाई आया होता है, and that has helped us build a culture. Everyone is doing that now, and that is like exceptional, and by all of these things together are making you reach places, and you will get to next place, bro. राइट, जैसे अब मेरे माइंड में आपके उसके लिए है कि भाई अब जी वैगन तक पहुंचाना है। पहुंचेंगे, एंड इवेंचुअली इट विल टेक इयर्स, बट आई थिंक वी विल गेट देयर। एंड सच अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन भाई। अब भाई क्वेश्चन है, those who are watching this, I'm sure hundreds of coaches, even thousands of coaches will watch this, who have watched our content in the past, और उन्होंने मेरी कोई ad देखी होगी, या skeptical है, or who haven't worked with us or haven't pulled the trigger yet. Do you have any message for them, bro? ब्रो एक्चुअली इस चीज में ना मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि मुझे ना कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मैसेजिंग 10 तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली बोलेंगे ना, उनको चीजें समझ नहीं आएगी कि यार वी आर, चलो ठीक है, लेट्स ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस करके, ठीक है, लेट्स स्ट्रेटेजाइज योर। बट अगर मेरे साथ भी जो यही हुआ था, आप एक मैसेजिंग आप 10 तरीके से करके डालते हो ना कि ठीक है वी आर स्टार्टिंग अ कोहॉर्ट करके, और ठीक है जो यहाँ पे स्टक है वो मुझे ये मैसेज करो वो, तो मेरे हिसाब से यार भाई ये पूरा एक ग्राउंड है, ग्राउंड के इतनी सारी प्रॉब्लम है, और ये ग्राउंड में मेन चीज है प्रॉब्लम फिटनेस बिजनेस की। तो मेरे हिसाब से भाई जब मैं कर सकता हूँ ना, और मैं कर सकता हूँ, तो यार आज के टाइम पे, जब आज के टाइम पे भाई लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज भी है, जिनके पास फैसिलिटीज भी नहीं है, जो मेरे से छोटे भी है, राइट, जो 21-22 के, जैसे कि कार्तिक इन अवर टीममेट्स, राइट। तो मेरे हिसाब से ना यार आपको इतना वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करोगे, मैं यहाँ तक पहुंच पाया तो नहीं पहुंच पाया, तो क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसका रीजन बस आप ही होंगे, क्योंकि सेम हैपन विद मी, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, बट स्टिल मैं पहुंचा, राइट। आपकी फैमिली के पास भी नहीं होंगे, बट स्टिल आप देखो कि यार मुझे अगर, वो कहते हैं ना कि भाई मरता क्या नहीं करता, डू और डाई वाला गेम, तो वो गेम तो बिल्कुल आप कर दो तगड़ा। दूसरी चीज, नेवर वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज भाई बनाओ अपने लिए, ठीक है। ये वेट मत करो वाईवेस का कोई नया ऐड आएगा तो मैं उसको देखूंगा, या अब कोई फॉर एग्जांपल हेमंत के बाद किसी की नेक्स्ट केस स्टडी आएगी मैं जब करूंगा, नहीं। एंड भाई आई वुड पर्सनली सजेस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आर द गोल्डन पीरियड फॉर द कोचेस हु वांट टू स्टार्ट। द रीजन व्हाई, बिकॉज नए क्लाइंट्स इतना रेडी नहीं होते, तो दे कैन वर्क ऑन देयर सर्विसेज, बिजनेस पे, माइंडसेट पे। दिसंबर से, जैसे आपने सेम हमारे साथ अक्टूबर नवंबर 2 महीने करा था, राइट, उस इवेंट के बाद एफबी में, तो सेम भाई कोचेस सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है। बेस्ट टाइम तो सारे ही होते हैं, बट गोल्डन पीरियड आप मेरे हिसाब से ये है, तो दे कैन स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। और भाई अभी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मेरे लिए भी अनरियलिस्टिक था फर्स्ट 6 फिगर हिट करना, बट जब मैंने हिट करा 6, अब तो बहुत, चलो अब तो ये हो गया कि यार एक बेस लाइन बन गई है 7 to 8 लाख की फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज है कि यार करो, अपने लिए करो, ठीक है। अगर आपको 5 लाख 10 लाख 3 लाख इतना बड़ा नंबर अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो एटलीस्ट ये सोचो कि मैं जहां पे हूँ इससे मैं अगर 2x भी कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग 30,000, आप 60,000 भी कर लो, वो भी आपके लिए बहुत सही है। उसके बाद देन यू रियलाइज कि यार ये बंदे का मैंने पॉडकास्ट सुना था हेमंत का, एंड वो सही बात कह रहा था, एंड जब तक आप सुनोगे मैं और आगे पहुंच जाऊंगा।
Hello, bhai. Thank you so much. No less than a pitch for our services. Thank you, bhai. Thank you नहीं so भाई, much. एक चीज, वन थिंग बेस्ट अबाउट यू, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, मैं Hmm, लाइक फ्रेंड इज मुकुल, यश, hmm, तो hmm, हमेशा ना, आज तक मैंने ना नेगेटिव पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट भाई, पर्सनल बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट है मैंने आज तक किसी एक के मुंह से नहीं सुना। hmm, हम हमेशा ये कहते हैं कि यार वाईवेस नोज वेरी वेल, इनडायरेक्टली वो उनके नेचर में है कि क्लाइंट को ना क्या सर्व करना है, और वो एम्पथी है कि यार उनको पता है कि किसको किसके लिए क्या करना है, टू बी ऑनेस्ट। तो भाई मेरे हिसाब से, जैसे आपने उस दिन स्टोरी डाली थी कि यार एफबी को मैं रेफरल बिजनेस बनाऊंगा, तो मेरे hmm, हिसाब से भाई hmm, ऑलरेडी बन गया है वो। हमसे कोई पूछेगा, hmm, हमारे माइंड में विदाउट सेकंड थॉट ये आएगा कि यार ठीक है भाई, गो टू यश, उन्होंने मुझे ये बनाया है। hmm, क्योंकि काफी लोगों ने चीजें अचीव करने के बाद भी वो ये बोलते हैं ठीक है, दिस इज जैसा सर्विस गेम, बट फॉर hmm. मी तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुझे तो जीरो से हीरो वाइविस ने बनाया भाई, टू बी ऑनेस्ट। भाई देखो, आई एम जस्ट द गाइड. आई कैन शो यू द डोर, यू वांट टू हैव टू वॉक पास्ट इट. और भाई आपने बहुत अच्छे से वॉक किया है. एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. And वी हैव कम अ लॉन्ग वे. You're just 25. Imagine what we are going to do when you're 27, 20, 29. And I know that our journey as a teammate is lifelong. And bhai, this made me so happy. And now after this interview, bro, I'm 10 times more proud of you because मुझे background story थोड़ा तो बहुत भी नहीं पता था actually. Lot of things I'm like wow, literally wow. And bhai, I'm sure lot of people, lot of coaches would watch it. Lot of women would watch it who are in your niche. तो फॉर देम मुझे प्लीज अपना थोड़ा आईजी हैंडल बता दो सो दैट वी कैन ड्रॉप इट डाउन. व्हाट इज योर आईजी हैंडल? वेयर कैन समवन रीच इट्स आउट टू यू? हाँ जी, हाँ जी भाई. इट्स कोच्ड बाय हेमंत, कोच ईडी बाय हेमंत, कोच्ड बाय हेमंत। यस, एंड तो वील सेट अप द लिंक इन द बायो यस आल्सो. भाई, यस. यस, नाउ वी आर ऑफरिंग 3+1 एज वेल। 3+1 ऑफर चल रहा है. ग्रेट सर्विस एंड सर्विस पे इनके पीछे लगा हुआ हूँ वैसे भी मैं लास्ट 2-3 मंथ से. सो वी आर यस इवन एग्जैक्टली। लेवलिंग इट अप फर्दर. तो एंड दैट्स ए भाई ग्रेट थिंग, मैं सोचता हूँ कि वाईबीएस हमारा कोच है तो इनको बस हमारे नंबर से मतलब होना चाहिए। बट आपने मुझे बोला कि भाई ये दो काम कर, इसके अलावा मैं तेरी कुछ स्ट्रेटेजाइजेशन करूंगा ही नहीं अब, कि रिन्यूअल पे एंड सर्विस पे। मैं सोच रहा चलो यार ये भी अलग चीज है कि पर्सनली आप केयर करते हो टीम की, ठीक है। और ये भाई मतलब एक बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है। क्योंकि जैसे जैसे मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर, मेरे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आती जा रही है कि यार मतलब कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का ही साइन है कि यार आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल, और मैं जब कोई चीज नहीं अचीव करता मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी तो मैंने अपना पोटेंशियल हाँ यूज ही जी. नहीं करा। तो ये चीज सबसे बेस्ट है कि भाई ठीक है, और कि भाई ठीक है हमारे पास इतनी ग्रेट कोच है, इतनी ग्रेट टीम है, एंड एक प्लेटफॉर्म है जो, मेरा ये भी सपना था कि कभी मेरा कोई इंटरव्यू ले भाई, वो आज पूरा हो गया ये भी। चलो यार, ग्रेट इंटरव्यू भाई. मतलब and when you are living a life like this, obviously every interview would be good because you have so many experiences to share. यस And भाई, भाई एक्सेप्शनल है, मजा आ गया मेरे को लास्ट एक सेम घंटे हियर में. भाई। And guys, those who are watching it, thank you for tuning in. And मुझे तो मजा आ गया, मेरे को नींद भी अच्छी आएगी. And guys, Hemant's link is in the caption. Females, he's a great coach. I vouch for him, that too on a public platform. And coaches, fill the form. Fill the form, या and I'll see you on the other side. And we'll meet again. We'll have another podcast super soon. I'm 100% sure next 3 to 6 months when we यस have भाई, more pointers to discuss. When we have a speciality hot seat to discuss. आज इस बार हमने overall किया. Next time we'll just pick up one topic. And यस guys, भाई, see you soon. And thank you so much for your time, Hemant. मजा आ गया bro. थैंक यू भाई, थैंक यू।